رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر فیضان رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ امید ہے کہ افطار کے بعد کافی حشاش بشاش فیل کر رہے ہوں گے۔ ٹرانسمیشن کے آغاز میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیے، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے، اور یوٹیوب پر ہمیں لائیو جوائن کرنے کے لیے آپ موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور ہماری نشریات کو آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی براؤزر میں live.paygham.tv لکھ کر سرچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ ہمارے چینل کو یہاں پہ واچ کرتے ہوئے آپ جب سبسکرائب کر لیں گے تو اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکیں گے اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تعارف کرواتا چلوں، نعت خواں ہیں معظم محمدی، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں معظم صاحب؟ ٹھیک، اللہ کا شکر۔ روزہ صحیح طرح سے افطار کیا آپ نے؟ جی چلے ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر، ہستی مسکراتی شخصیت۔ آج پتہ نہیں کیوں نہیں مسکرا رہے ابھی انٹروڈکشن دیتے ہوئے، نہیں اب مسکرا پڑے ہیں جی، ٹھیک ہے سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ اللہ کا بہت کرم ہے، شکر ماشاءاللہ۔ سر بہت سی باتیں کریں گے، سوالات کے جوابات دیں گے، ذمہ داری سے انجام دیں گے۔ پہلے چلتے ہیں معظم محمدی صاحب کی جانب، پوچھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں آپ؟ حمد باری تعالیٰ۔ ماشاءاللہ، سنائیے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، پھر اس کو کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी साहब, इस बच्चे के चेहरे पे आपने मुस्कुराहट और मासूमियत देखी है? अल्लाह ताला ढेरों बरकतें दे जी बच्चे को। आमीन अल्लाह ताला आमीन। बामल अच्छा, मुझे मुसलमान चूँकि बनाए। ब्रेक पे जाना है, माशाल्लाह आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं मौसम के हवाले से, और लिखते हैं सारम माशाल्लाह माशाल्लाह, शहज़ादा मौज़म मोहम्मदी, सुभान। बड़ा प्यार करते हैं जी लोग आपसे। और यहाँ पे आपके वालिद के भी कमेंट्स आ रहे हैं हमें। मौलाना इब्राहिम मोहम्मदी लिखते हैं माशाल्लाह मेरा शहज़ादा बेटा, तो वाकई जी शहज़ादा बच्चा तो है माशाल्लाह। और पैगाम टेलीविज़न का शुक्रिया अदा किया मोहम्मदी साहब ने, हम इनके बड़े मशकूर हैं, मोहब्बतों का इजहार करते हैं, मुझसे भी मोहब्बत का इजहार किया जी, हम भी आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। ले जी, ट्रांसमिशन जारी है। मौज़म मोहम्मदी, आपके आने का शुक्रिया। ऐसी हंसते मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें और खूब तरक्कियाँ करें इंशाअल्लाह ताला, आमीन। बड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान 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 रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 रमज़ान, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे, आपके राय से हम आपको आगाह करेंगे जो आप हमें लिख के भेज रहे हैं। हमारी पसंदीदगी यहाँ पे आप जाहिर कर रहे हैं कमेंट्स में, बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं पैगाम टेलीविज़न का, और साथ साथ सवालात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़ी साहब, पहला सवाल है अबू सुफियान से पहले कुछ और भी है। अच्छा चले, वो आप पहले बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। जी निज़ामी भाई, जब से रमज़ान शुरू हुआ है, अल्लाह की रहमतों, बरकतों और उसकी बख्शिश का एक बहुत बड़ा मौसम बहार आया हुआ है जी। हम हर बंदा कोशिश कर रहा है कि अल्लाह से ज़्यादा उसकी रहमतें ले ले, बरकतें ले ले। खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत मौका अता फरमाया। जी। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो गया और वो अपने रब के पास वापस भी जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे मशहूर हो जाती हैं, उनमें से एक ये मशहूर चीज़ है कि जो बंदा रमज़ान में फ़ौत हो, गौर करें ज़रा, जो बंदा रमज़ान में फ़ौत हो वो सीधा जन्नत में जाता है। जी, हमने रिपीटेडली क्वेश्चन भी बड़े शामिल किए ना? उसका कब्र में कोई हिसाब किताब, कोई उसको आजमाइश, कोई इम्तिहान नहीं होता, और आखिरत में भी कोई हिसाब किताब नहीं, वो सीधा जन्नत में जाता है। ये थोड़ा सा सही है और ज़्यादा गलत है। हर वो शख्स जिसके सीने में ईमान मौजूद हो, अपने अल्लाह अरहमुर राहिमीन का वो पक्का नमाजी, परहेज़गार, मुत्तकी, फरमाबरदार बंदा हो, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो, और वो रोज़े की हालत में वफ़ात पा जाए, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि चूँकि इसका ख़ात्मा एक अच्छे नेक अमल पर हुआ है जी, और सीने के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत भी मौजूद है, तो ये बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि कब्र में भी उससे पूछगिछ नहीं होगी, सवाल जवाब नहीं होंगे, और आखिरत में भी उसका हिसाब किताब नहीं होगा। हाँ, जन्नत की गारंटी है, जन्नत की बिशारत है, लेकिन ये मराहल तो ये भी सारे तय करेगा। अच्छा। और इसके मुकाबले में जिस शख्स के सीने में अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत ही ना हो, अल्लाह अकबर, या वो रोज़ा रख ही नहीं रहा था, जानबूझ कर रोज़े छोड़ रहा था, नमाज वो पढ़ नहीं रहा था, तो फिर वो रमज़ान में फ़ौत हो जाए, तो ये बिशारतें उसके लिए नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ईमान का होना शर्त है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत, और सच्ची मोहब्बत मांगती है इत्तिबा, फरमाबरदारी, कि वो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल पैरा भी था, आपकी तालीमात के मुताबिक रोज़ा भी रखा हुआ हो, और फिर रोज़े की हालत में अचानक वफ़ात पा जाए, तो इंशाअल्लाह उसके लिए जन्नत की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये हर शख्स के लिए कहना कि जो भी फ़ौत हो गया, खा वो रोज़ा रखता था, नमाज पढ़ता था, ईमान भी उसका था कि नहीं, बस जी ये रमज़ान में फ़ौत हुआ, तो कतन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए और वाकई हमें उन ईमानदारों में शामिल फरमाए जो अल्लाह के यहाँ उसकी रहमतों के हक़दार बन जाए। ठीक है। अच्छा बड़ी साहब, अगर 27 रमज़ानुल मुबारक के बारे में कहा जाए
अगर 27 रमज़ान का हो या जुमे की रात और दिन का हो, एक फरमान में आता है कि जो मुसलमान मर्द और औरत जुमे के दिन या जुमे की रात को फौत होता है जी, तो उसको कब्र के इम्तिहानात जो सवालात होते हैं ना, उससे अल्लाह बचा लेता है। ये रवायत ठीक है, लेकिन 27 रमज़ान को ये मेरे इल्म में नहीं है। और बात फिर वही है कि जुमे के दिन या जुमे की रात वो फौत हो, लेकिन हो ईमानदार मोमिन अल्लाह का फरमाबरदार, तो फिर उसके लिए अल्लाह की रहमतों की उम्मीद पूरी करनी चाहिए। और अगर वो अल्लाह का नाफरमान था, आमना के लाल के साथ उसको कोई प्यार ही नहीं है, आपकी तालीमात से दूर है, तो फिर ऐसी बिशारतें उसको सुनाना ये गलत फहमी के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है, एक आज के पहले लाइव कॉलर उनको शामिल करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। सलीम साहब हैं टोबा टेक सिंह से। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? जी आपकी दुआएं हैं, फरमाइए क्या पूछेंगे? सर जी मेरा ये तलबा है कि मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं सब्जी बेचता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ रिज़्क हलाल कमाऊँ। माशाल्लाह। सर जी तो मेरे ना रिज़्क हलाल में बरकत नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कम बचत लेने की, रिज़्क हलाल कमाने की, तो बरकत नहीं है। ठीक है, आपके कॉल करने का शुक्रिया, अल्लाह ताला बरकत डाले। मैं भट्टी साहब से गुजारिश करता हूँ, पता नहीं भाई किस चीज़ को बरकत कह रहे हैं। अगर तो उनके कहने का मतलब ये है कि वो सब्ज़ी बेचें और रातों रात अमीर हो जाएं, बरकत इसको समझ रहे हैं, तो फिर उनकी ये समझ गलत है। अच्छा, बरकत का मतलब है कि आपके पास माल थोड़ा है या ज़्यादा, वो काउंट ही नहीं करता। आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती दी हो, जो चीज़ आपके पास है वो आपको कफ़ायत कर जाए, आपको और आपके बीवी बच्चों के लिए वो काफ़ी हो जाए, तो ये बरकत है। एक बंदा थोड़ा कमाता है और बीवी को बच्चों को अल्लाह ने कनात दी हुई है, सब्र और हौसला दिया है, वो उसी को इस्तेमाल करके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ये बरकत ही बरकत है। और एक बंदा करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है और उसके बीवी बच्चे बीमार हैं, उसको खुद सेहत हासिल नहीं है, उसको खुद नुकसान पे नुकसान हो रहा है, और जो माल खा रहा है पी रहा है उस पर शुक्र की तौफीक नहीं है, तो ये बेबरकती की इंतहा है। तो ये भाई साहब माल की कसरत को बरकत ना समझें, बल्कि ये समझें कि उनके घर में सेहत है, अल्लाह ने सुकून दिया हुआ है, बच्चे फरमा बरदार हैं, तो ये बरकत ही बरकत है हलाल की। अगर इन्हीं बच्चों को हराम माल कमाया जाए और आपकी जेब में ढेरों हों, बच्चे सारे नाफरमान हों, सेहत आपको हासिल ना हो, घर में हर वक्त लड़ाई हो, तो ये बेबरकती है। तो समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला भाई को मुस्बत बाबरकत बनाए और रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। आमीन। सर अबू सुफियान, इनके सवाल का जवाब हमने दिया था, लेकिन ये लिंक कर रहा है, उन्हें दोबारा हमें लिख के भेजा है। लिखते मैं पहले सवाल किया था कि समंदर की नमाज के हवाले से, तो आपने बताया था कि समंदर में जहाज़ चल रहा है या रुका हुआ है, तो जहाज़ रुका होता है उसमें ड्यूटी है मेरी, 6 माह बाद मैं किनारे पर आता हूँ। समुंदर के अंदर ही रुका हुआ किसी एक जगह पर जी, हाँ, तो वो हमने जवाब दिया था ना कि अगर किसी एक जगह पर 3 दिन से ज़्यादा आप स्टे करेंगे जी, तो फिर आप नमाज पूरी पढ़नी शुरू कर देंगे। ठीक है। एक और लाइव कॉलर हैं जी, बिलाल साहब हैं ओकाड़ा से। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल मिल चुकी है, बोलिए। आप टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे तो मेरी आवाज आएगी बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा बिलाल भाई। मुफ्ती साहब तबीयत की सुनाए, आप भी ठीक ठाक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही दिल को तस्कीन भी देता है। जज़ाकल्लाह। सवाल ये था कि यानी आपने मसला कोई बयान किया था, उसकी सही समझ नहीं आई। वो मसला ये था कि यानी जब हम वितर के बाद वितर जब पढ़ लिए उसके बाद अगर बंदा 4 रकअत नफल नमाज पढ़े तो क्या उसका सवाब लैलतुल कदर की रात जितना होगा? इसके बारे में जरा रहनुमाई कर दें। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और मेरी गुजारिश है बिलाल साहब या हमारे जितने भी कॉलर अब कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर लिया करें ताकि आवाज़ प्रॉपर थ्रू हो सके। कॉल करने का शुक्रिया सर। जी हमने पहले भी अर्ज़ की थी कि 4 रकअत नफल पढ़ने हैं इशा की नमाज के बाद, जी सोने से पहले और ये 4 रकात, ये जो हमें गलतफहमी हो रही है लैलतुल कदर के बराबर, तो इसका हमने कभी भी नहीं कहा। जी हमने पहले भी वजाहत की थी कि उस 4 रकात नमाज का सवाब ऐसे होगा जैसे आपने इन 4 रकात को लैलतुल कदर में पढ़ा हो। तो जितना सवाब लैलतुल कदर में 4 रकात पढ़ने का होगा
उतना ही सवाब इन 4 रकात का होगा अगर आप अपने घर में इशा की नमाज के बाद पढ़ते हैं और इसका एहतमाम करते हैं, रोज़ाना पढ़ते रहते हैं, तो फिर आपको इन 4 का सवाब लैलतुल कदर में पड़ी हुई 4 रकात के बराबर मिलेगा। ये नहीं कि पूरी लैलतुल कदर, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। लैलतुल कदर 1000 महीनों की इबादत से अफजल और आला है। तो उस रात में अगर कोई बंदा 4 नफल पढ़े और फिर ये इशा के बाद वाले 4 पढ़े तो इनका सवाब बराबर होगा आपस में। ठीक है, ठीक है। जीनत अल्ताफ़ लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन शेख साहब को और आपको अल्लाह पाक करोड़ों बरकतों से नवाजे, आमीन, आमीन, जज़ाकल्लाह। काइंडली शेख साहब से पूछ दें कि रिस्क औरत की किस्मत का होता है और औलाद मर्द की। काइंडली इसके बारे में वजाहत फरमा दे, मेहरबानी होगी। हाँ जी, ये भी हमारे मुआशरे में गलत फहमी है जी कि रिज़्क जो है औरत की वजह से होता है और औलाद जो है वो मर्द की किस्म से होती है। जी, उल्ट भी हो जाता है। अगर औलाद ना हो रही हो जी तो उल्ट भी कर देते हैं, वो कहते हैं जी ये बहू आई है तो हमें कुछ नहीं मिला। जी। और अगर रिज़्क वहाँ पहले से वाफर मौजूद हो और कुछ नुकसान हो जाए तो कहते हैं ये बहू आई है तो इसकी वजह से हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये फजूलियात हैं हमारे मुआशरे की। रिज़्क हर बच्चे का, अभी वो माँ के पेट में होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान जो दुनिया में आने वाला है उसका रिज़्क, उसकी उम्र, वो खुशबख्त होगा, खुश नसीब होगा कि नहीं होगा, ये 4 चीज़ें उसकी पहले लिख दी जाती हैं। तो बीवी के आने से कुछ बढ़ता नहीं है, वो रिज़्क जो पहले से लिखा हुआ है वही मिलता है। हाँ, बशारत एक और है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अपने नेक मोमिन गुलाम बच्चों और बच्चियों की भी शादियाँ कर दो, अगर उनके पास माल नहीं होगा तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उनको मालदार कर देगा। लेकिन इसमें ये कतन नहीं है कि वो रिज़्क बीवी का होता है, बल्कि रिज़्क वही है जो पहले से अल्लाह ने इन दोनों का लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि बीवी शुक्रगुजार है, उसके शुक्र की वजह से रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत दे दे। खामद वो शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी नेक सीरत बीवी दी है, उसकी वजह से रिज़्क में इजाफा हो जाए। लेकिन इसका मतलब कतन बीवी के साथ जोड़ना या खामद के साथ जोड़ना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। एक लाइव कॉलर हैं जी, उस्मान हबीब साहब सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। क्या हाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी, मेरा सवाल है कि मैंने रमज़ान यहाँ पाकिस्तान में शुरू किया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से आखिरी अशरा मैंने सऊदीया में गुजारना है और ईद भी हमारी वहाँ होगी जी। अब यहाँ हमने एक दिन बाद रोज़ा शुरू किया था, जबकि सऊदीया में एक दिन पहले रोज़ा शुरू हो गया था जी। हमारी रमज़ान की जो गिनती है वो किसके मुताबिक होगी, पाकिस्तान के मुताबिक या सऊदीया के मुताबिक? जी बहुत शुक्रिया उस्मान हबीब साहब कॉल करने का। अभी जवाब लेते हैं सर। हाँ, पूछने का मतलब ये है कि मैं ईद सऊदीया के साथ करूँ कि पाकिस्तान के साथ? साथ। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि जिस दिन सऊदीया वाले ईद कर रहे हों भाई साहब वहाँ रोज़ा रख के बैठे हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद वाले दिन रोज़ा रखने से सख्ती से मना किया है। अब ये मसला है कि इनकी गिनती कैसे पूरी होगी। अगर सऊदीया में रोज़े होते हैं 29 जी, तो इनके ज़ाहिर हो जाएंगे 28 जी। अगर वहाँ होते हैं 30 तो इनके रह जाएंगे 29। तो पहला हुक्म ये है कि ईद मोमनों के साथ करनी है और रोज़ा भी मोमनों के साथ रखना है। जब सारे मोमन रोज़ा रख रहे हों तो आप भी रखो जी। जब सबको चांद नज़र आ गया, सब ईद कर रहे हो तो आप भी उनके साथ ईद करो। बाकी जो कमी रह गई है तो वो ईद के बाद ये पूरी करेंगे। ठीक। आपने रोज़ों की गिनती अगर 29 का महीना था या 30 का था, इनका एक रोज़ा कम हुआ है तो वो पूरा कर लें ईद के बाद। ईद के बाद, ठीक है। लेकिन ईद वहाँ पे ही करेंगे, ईद उनके साथ उनके जिस दिन साथ वो ही करेंगे उसी दिन ये भी उसी दिन करेंगे। ठीक है। मियाँ शाहिद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। दुआ कीजिए अल्लाह पाक मेरे बेटे को आप जैसा आलिम दीन बनाए। माशाल्लाह आपको देख के दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ताला जी आपके बेटे को आलिम रब्बानी बनाए और हमसे भी हज़ारों करोड़ गुना बेहतर आलिम दीन बनाए। अल्लाह उनको सही सच्चा और पक्का मुसलमान अहले इल्म में से बना दे, आलिम रब्बानी बना दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत दुआ दी आपने। हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह तो अल्लाह ताला उसको सही सच्चा पक्का अहले इल्म में से आलिम रब्बानी बनाए, उसके इल्म और अमल में बरकत दे और वालिदैन के लिए सादा के लिए सदका जारिया बनाए और अल्लाह ताला इस बच्चे की वजह से वालिदैन की आंखें ठंडी फरमाए। आमीन। अच्छा जी, आगे कासिम हसनैन लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आप दोनों को हमेशा हंसता रखे। जज़ाकल्लाह खैरा।
और सवाल यह है कि कुछ लोग फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ में ज़िक्र शुरू कर देते हैं, बाकी लोग अभी बाकी नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये सही है? हाँ, जब नमाज ख़त्म होती है ना तो अब हुक्म है कायनात के सरदार का जी। अब ये जो लेट हुए हैं उनका अपना एक उधर है, ठीक है, वो नमाज मुकम्मल करेंगे। और जिनकी नमाज मुकम्मल हो गई है उनको हुक्म क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ख़त्म होकर बुलंद आवाज़ से कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जो कलिमात हैं कायनात के सरदार ने चूँकि ऊँची आवाज़ से पढ़े हैं, सहाबा कराम भी ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे। अब इसकी वजह से अगर पीछे रह जाने वालों को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है तो ये उनके लिए काबिल बर्दाश्त है, बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। ठीक है। मोहम्मद आसिफ लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर कोई बंदा अपनी दाढ़ी कटवा दे तो जितनी देर दाढ़ी काटी गई उसका गुनाह होता रहेगा? अल्लाह अकबर। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपनी दाढ़ियों को छोड़ दो जी, बढ़ने दो। इनको हुक्म हुआ कि इनको बढ़ाओ, इनको गना करो, इनको तेल लगा के रखो। तो मुंडवाना आपके हुक्म की नाफरमानी है, नहीं मुंडवानी चाहिए जी। अब अगर वो मुंडवा रहा है तो ज़ाहिर है अल्लाह के नबी के हुक्म की नाफरमानी तो वो कर रहा है। तो अगर उसको साथ साथ नदामत भी है, पछतावा भी है, तो फिर इस अमल को छोड़ दे। फिर तौबा यही होगी कि वो छोड़ दे। अब गुनाह कितना होता है, ज़ाहिर है जितनी देर नाफरमानी करेगा गुनाह तो होता रहेगा। तो अगर उनको ये पछतावा नदामत मौजूद है, एहसास भी हो रहा है कि मुझे गुनाह हो रहा है, तो उनको तौबा कर लेनी चाहिए और फ़ौरन छोड़ देना चाहिए जी। ठीक, अल्लाह ताला भाई को तौफीक अता फरमाए। आमीन। शरीफा साहिबा हैं बिहाड़ी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पूछिए, क्या सवाल पूछेंगी? बेटा मेरी बेटी थी तो वो ना रिश्तेदारों में निकाह किया था, रुखसती नहीं की थी। अच्छा जी। 1.5 महीने के बाद वो लड़का जेल में चला गया। 4 साल तक वो जेल में रहा, हमने खुला ले ली। अल्लाह उसको नोटिस वगैरह नहीं उन्होंने भेजा। क्या वो खुला तलाक होगी या नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। अभी जवाब लेते हैं जी। अल्लाह ताला रहम फरमा दे। आमीन। बच्चियों की शादी इसलिए तो वालिदैन नहीं करते ना कि वो घर में ही बैठी रहें। तो अल्लाह ताला जी इनके लिए आसानियाँ फरमाए। पहली बात तो ये है कि इन्होंने शादी की तो रुखसती नहीं हुई और खुला इन्होंने ले लिया। अगर अदालत डिग्री जारी कर दे तो उसके बाद ये अपनी बच्ची की शादी आगे कर सकते हैं। लेकिन वो शायद कह रही हैं कि उन्होंने लड़के को नोटिस नहीं भेजे। हाँ जी, कुछ ऐसे ही कहा है। नहीं, अदालत को तो बाकायदा बताया जाता है कि भाई ये मसला है। अदालत पूछती है ना भी आप खुला क्यों ले रहे हैं। लड़के ने नोटिस नहीं भेजे, लड़के ने नहीं भेजे इनको। तो लड़के का तो भेजना यहाँ बनता ही नहीं, बनता ही नहीं। जब इन्होंने खुले के लिए यूनियन काउंसिल में या अदालत में रिट की है तो फिर लड़के के नोटिस का इंतजार नहीं होता, बल्कि यूनियन काउंसिल या अदालत नोटिस भेजती है लड़के को, लड़की की तरफ से, लड़की की तरफ से कि भाई वो लड़की वाले खुला मांग रहे हैं, तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है जी, बताओ। और अगर वो कोई जवाब नहीं देता या कोई मुस्बत जवाब नहीं देता या वो जज को कायल नहीं कर पाता तो फिर जज या यूनियन काउंसिल वाले लड़की वालों को एक डिग्री, एक फ़ैसला जारी कर देते हैं, जिसके बाद वो खातून आगे शादी कर सकती है। ठीक है। मोहम्मद अली सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम अली। जी अली भाई, क्या अकीका में बड़ा जानवर कर सकते हैं? 2 मौक़िफ़ हैं जी। एक मौक़िफ़ ये है कि बड़ा जानवर भी हो सकता है जी। ये फ़ुक़हा कहते हैं, ये फ़ुक़हा की बात है। फ़ुक़हा इज़ाम कहते हैं कि अगर बड़ा जानवर करेंगे तो बच्चे की तरफ से भी और बच्ची की तरफ से भी पूरा जानवर यानी पूरा ऊँट, पूरी गाय ये करनी पड़ेगी जी। और ये जो हमने फिर उसके अपनी डेफिनेशन कर ली है कि बकरे गाय में और ऊँट में चूँकि 7 हिस्से होते हैं तो लिहाजा 2, 3, 4 बच्चों का अकीका हो जाएगा, तो ये गलत रवैया है, ये दुरुस्त नहीं है। तो अकीके में बड़ा जानवर करना ये फ़ुक़हा का मौक़िफ़ है। और सुन्नत नबवी क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि बच्चा हो तो 2 जानवर, बकरे, बकरियां, दुम्बे, दुम्बियां, ये 2 करें, और अगर अल्लाह ने बेटी दी है तो 1 करें। तो सुन्नत यही है, बड़ा जानवर अकीके में ज़िबा करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर कोई करना चाहे, कहता है जी मुझे अल्लाह ने माल दिया हुआ है, तो फिर फ़ुक़हा इज़ाम कहते हैं कि वो एक बच्चे की तरफ से पूरा जानवर करेगा, उसमें हिस्से नहीं कर सकता है। ठीक है। एक और लाइव कॉलर हैं राव सिकंदर फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام जी शुक्रिया कॉल का, पूछिए क्या पूछेंगे? जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं सुनारों का काम करता हूँ, ज्वेलरी का, जी गोल्ड का काम, जी गोल्ड का काम करता हूँ और मुझे मेरा एग्रीमेंट बैंक में हुआ है। जी एग्रीमेंट ये है कि लोग सोना रख कर वहाँ से पैसे लेते हैं, लेकिन मेरा एग्रीमेंट सिर्फ बैंक से यही है कि बैंक वाले मुझे ये पैगाम भेजते हैं कि जी आप आकर इस गोल्ड की कीमत लगा दें। अच्छा जी। तो मैं अपनी चार्जेस जो मेरी फीस है वो मुझे मिल जाती है। क्या मैं वो जो सोना रख के पैसे लेते हैं, ज़ाहिर है कि वो इंटरेस्ट पर लेते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ बैंक के साथ एग्रीमेंट है कि मैं बैंक को उस सोने की, उस गोल्ड की प्राइस बताता हूँ, और जब वो जो रख कर जाता है सोना, जब वो नहीं वो उठाता सोना तो वो मुझे लेना पड़ता है। तो वो आपको खरीदना पड़ता है? हाँ जी, मुझे खरीदना पड़ता है। अच्छा जी, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये पूछना चाहते हैं कि जो चार्जेस आप बैंक से लेते हैं, जो आपके तय हुए हैं, वो हलाल हैं या नहीं? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग सोना रख कर पैसे लेते तो वो ही लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ बैंक से अपनी फीस जो चार्ज करता हूँ जी, मैं तो सूद वाले पैसों में मुलव्वस तो नहीं होता। ठीक है राव साहब, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सर ये क्वेश्चन हम वैसे भी अपने प्रोग्राम्स में शामिल कर चुके हैं, जी लेकिन जी, चूंकि उन्हें लाइव भाई साहब ने जो पूछा है कि मैं जो चार्जेस लेता हूँ तो मेरा सूद के साथ ताल्लुक नहीं है, तो मेरे मोहतरम भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म के लोगों का तज़किरा किया है जी। एक वो जो सूद लेता है, इसको आप बैंक कह सकते हैं। एक वो है जो सूद दे रहा है, ठीक है, एक बंदा पैसे ले रहा है, दूसरा बैंक को दे रहा है, एक बैंक से ले रहा है। तीसरा वो है जो गवाही देता है, और चौथा वो है जो सिर्फ फाइल फिल करके इनको दे देता है, लो जनाब साइन हो गया जाओ। तो आपने फरमाया गुनाह में चारों बराबर हैं। तो ये भाई साहब सपोर्ट तो कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, वो सोना, शामिल है इसमें। वो सोना जिस पर बैंक ने कर्जा इशू करना है कस्टमर को, उसका एस्टिमेट लगा के ये दे रहे हैं कि ये सोना इतने कैरात का है, इतनी इसकी कीमत होगी और मेरी फीस मुझे दे दें। तो ये तावन है, और अल्लाह ताला कहते हैं वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, सूद को ये भी हराम समझ रहे हैं। तो सूद के मामलात में एक दूसरे को सपोर्ट करना ये भी हराम है, लिहाजा इनको ये काम नहीं करना चाहिए। अब इस पर हमारे वो जो व्यूज़ में आते हैं ना तबसरा नगार, वो कहते हैं जी बैंक के सिवा अब और नौकरी रह ही क्या गया है पाकिस्तान में, और बैंक की भी ना करें तो किधर जाएं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अगर तुम अल्लाह से डर जाओ, हराम छोड़ दोगे, तो अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ वहाँ से देगा जहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं पहुँचती है। तो वो भाई जो कहते हैं जी सिर्फ बैंक ही बचे, तो भाई बैंकों में आखिर कितने फ़ीसद आबादी है जो समा गई है, बाकी भी तो जी रहे हैं ना। तो इसलिए हराम के काम को जब आपको पता चल जाए कि ये हराम है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और भी कही, वो थोड़ी लामिंग लगी मुझे, वजाहत कीजिएगा। उन्होंने कहा कि जी जो कीमत मैं मुतय्यन करता हूँ, बैंक को बताता हूँ, अगर वो शख्स कीमत नहीं दे पाता जो लोन लिया हुआ है, तो मुझे वो सोना ख़रीदना पड़ता है बैंक से। बैंक कहता है कि तूने एस्टिमेट लगाया था, अब तुम ही खरीदो इसको कीमत। तो ये तो खामखा की ज़बरदस्ती है, ये तो और भी गलत बात है, इनके खिलाफ जा रहा है कि भाई आपने तो सिर्फ उनको चार्जेस कीमत बताई थी कि ये इतने के रात का है और इतनी इसकी कीमत है मार्केट में, तो इसमें इसके गले पड़ जाए जी, तो फिर ये तो और भी इनके नुकसान में है, तो इनको मज़ीद बचना चाहिए। ठीक है। एक और लाइव कॉलर हैं सुहेल साहब मियाँ चन्नू से। जी अस्सलाम वालेकुम। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। जी कर दिया बंद। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पूछिए क्या सवाल है सुहेल साहब? सर मैं बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, 2016 का यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएट हूँ जी। अनफॉर्चुनेटली जॉब सेटलमेंट नहीं हो रही, रिज़्क़ की बड़ी तंगी है। अच्छा जी, तो आप कोई दुआ करवाना चाह रहे हैं? जी सर, कोई ये देखिए कोई मुफ्ती साहब से पूछे कोई मसाइल है सर, पता नहीं क्या इशू, बड़ी परेशानी है सर बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर भाइयों की उमूमन ख्वाहिश होती है कि हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि आज हम पढ़ना शुरू करें और कल जॉब वाले ख़ुद हमारे दरवाजे पर आएँ और हमें कहें कि ये ले जाओ।
ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے میرے پاس معذرت کے ساتھ۔ تو بھائی صاحب کو پہلے تو ایک تو مشکل آئی، اس پر صبر کرنا چاہیے جی، صبر کے ساتھ ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ دوسرا اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ اگر میں اللہ کا فرما بردار ہوں، نیک ہوں، تو پھر یہ مشکل امتحان ہے، پھر صبر کرنا چاہیے۔ اور اگر واقعتاً میں اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی کر رہا ہوں کہ جس پر میرا مالک ناراض ہو گیا، اس نے رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں، تو پھر پہلے وہ نافرمانی چھوڑنی چاہیے۔ اس نافرمانی کو چھوڑنے کے بعد اپنے رب سے معافیاں مانگنے کے بعد نکلیں گے تو انشاءاللہ بند راہیں کھلیں گے۔ میں نے ابھی کیا پڑھا کہ وہ من یتق اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کے بند دروازے کھول دیتا ہے جی، اور اس کو رزق بھی بے شمار جگہوں سے دینے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے نا، تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، نافرمانی سے بچ جانا۔ تو بھائی صاحب اپنا جائزہ بھی لیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے اور اس کے بند دروازے ان کے لیے کھول دے۔ لیکن بند دروازے کھلوانے کا بہترین طریقہ ہے تقوی، کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اگر سٹل کوئی ان کے گھر میں، ان کی ذات میں کوئی نافرمانی والا عمل چل رہا ہے تو اس کو فوراً ختم کر دیں۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ہے ہمیں بھائی، ہم ہر بندہ جاب ہی کیوں ڈھونڈتا ہے؟ جی، الیکٹریکل انجینئر ہے ماشاءاللہ، تو اپنا کام کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ ابھی مجھے ایک دوست بتا رہا تھا جی، وہ انجینئر صاحب تھے، جاب ڈھونڈتے رہے نہیں ملی۔ ایک دن اتفاق سے دیکھا کہ سٹریٹ لائٹ جو ہے نا وہ خراب ہے۔ اچھا جی، تو وہ گئے، ان کو خیال آیا کہ یار کوئی مسافر کہیں ٹھوکر لگے گی، کوئی گرے گا، کوئی بچہ کوئی بڑا، تو وہ گئے دکان سے، اپنی جیب سے انہوں نے ایک بلب خریدا، سیڑھی لگائی اور سٹریٹ لائٹ تبدیل کر دی۔ اللہ نے ان کی اس نیکی کو ایسا قبول کیا کہ ان کا کام چل نکلا، محلے دار ان سے کام کرانا شروع ہوئے، یار یہ تو اچھا خاصا بندہ کام کا ایسے فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کو ایک بندے نے کام دیا، دوسرے نے دیا، تیسرے نے، آج وہ خوشحال ہے الحمدللہ۔ تو نوکری ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ خود اپنا کام کرنا شروع کر دیں، کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، مجھے لوگ کیا کہیں گے، اس نے الیکٹرک انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی چھوٹے سے چھوٹا کام جو آپ کی فیلڈ کا ہے، کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کریں، تو میرا خیال ہے جاب ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بنت عاشق لکھتی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ پاک برکتوں سے نوازے، بہت شکریہ جی۔ ایک کوشچن آیا ہے کہ نوید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جیسے لیڈیز جب روزے نہیں رکھتی اپنے خاص ایام میں، تو کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں موبائل ایپ پہ؟ پلیز رپلائی۔ جی، یہ آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی سہولت دے دی، مصحف کو، قرآن مجید کو، جس کے اندر صرف قرآن مجید ہو، تفسیر بھی نہ ہو، ترجمہ بھی نہ ہو، خالی قرآن ہو، تو اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تو ضروری ہے کہ بندہ پاک ہو۔ البتہ ان دنوں میں آپ موبائل لے لیں تو موبائل تو ایپ ہے نا، ایک گیجٹ ہے، اس کے اندر بے شمار چیزیں شامل ہیں، یہ مصحف والا حکم نہیں ہے۔ تو ان مخصوص دنوں میں اگر وہ اس کے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ٹرانسمیشن جاری ہے جی، سوالات بھی ابھی ہم مزید شامل کریں گے، کالز بھی شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے۔ سوالات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ اگر کام کے دوران پاؤڈر کلر منہ میں چلا جائے تو کیا اس سے روزہ باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟ یہ جو احباب ڈسپینسر وغیرہ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، جو پاؤڈر پینٹ کرتے ہیں، ہاں جو پینٹ کا ہو سکتا ہے یا جو کیمیکل پاؤڈرز کا کوئی لوگ بات پیکنگ نہیں، کا اس کو کام باہر کرتے ہیں۔ تھوک دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے پوچھتے ہیں، ایم خان صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ نماز کے آخر میں تشہد میں انگلی کتنی دفعہ اٹھانی چاہیے؟ اللہ اکبر،
انگلی کتنی دفعہ اٹھانی چاہیے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، یہ ادھر دیکھیں، آپ اس انگوٹھے کو اس درمیان والی انگلی کے کنارے کے ساتھ ملا لیتے اور یہ دائرہ بناتے، یا کبھی آپ تینوں انگلیں بند کر کے یہ ایسے اوپر رکھ لیتے اور یہ انگلی کھڑی ہے، یا آپ اس جڑ کے ساتھ، انگوٹھا ہے یہ انگلی شہادت کی انگلی کی جڑ کے ساتھ لگا کے ایسے رکھتے اور پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہتے مسلسل، اور ساتھ آپ تشہد میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہتے جب تک دعائیں جاری ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ حرکت جاری ہے۔ اور اب ہمارے کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ انگلی کا ڈائریکٹ کنیکشن دل کے ساتھ ہے، یہ ہلتی رہے تو دل بیدار ہے، آپ جاگ رہے ہیں، اور جہاں یہ ایسے نیچے گر گئی سمجھو آپ بھی سو گئے۔ تو ایک حکمت بھی آپ کے علماء نے بتائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ ہے کہ آپ اس کو مسلسل ایسے آہستہ آہستہ حرکت بھی دیتے رہتے اور ساتھ دعائیں بھی مانگتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں قاسم حسنین، مفتی صاحب آپ نے وضاحت کر دی، میرا سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ کیا لوگ کلمے کے ورد شروع کر دیتے ہیں، وہ جو نماز کے بعد والا سوال ہے، اور میں بلند آواز میں استغفر اللہ کہتا ہوں تو لوگ گھورتے ہیں جیسے کہ غلط کام کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ذکر وہی ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہوں گے، جتنے اذکار ہوں گے، وہ ہماری من مانی ہوگی، تو اپنی من مانی سے کیا ہوا ذکر پھر وہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ نہیں بتایا ہوگا۔ تو لہذا ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، جو بھی عمل کر رہا ہے وہ کوشش کرے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہے جی، محمد پرویز بھکر سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی جی کیجئے، وہ سن رہے ہیں آپ کو۔ جی فطرانے کے بارے میں پوچھنا ہے جی، فطرانہ کتنا، کیا مقدار ہے اس کی صحیح؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی کال کرنے کا بھٹی صاحب۔ فطرانے کے بارے میں فطرانہ جو ہے وہ آپ اپنے علاقے میں گندم کا ریٹ پتہ کر لیں، کیونکہ ہر علاقے میں ریٹ مختلف ہیں جی، تو اپنے علاقے میں گندم یا چاول کا ریٹ معلوم کر کے تو 2.5 کلو آپ نے دینا ہے۔ اگر گندم کے حساب سے دیں گے تو 2.5 کلو گندم یا آٹے کا ریٹ پتہ کر لیں، جتنا بازار میں ریٹ ہو اس کے حساب سے آپ دے دیں۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، میرا چھوٹا بھائی بہت غصہ کرتا ہے، پڑھنے بیٹھتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، قرآن پاک بھی نہیں پڑھتا، زبردستی کرے تو غصے میں آ جاتا ہے، اس کے لیے دعا کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ بچے کو ہدایت دے۔ آمین۔ قرآن پڑھنے سے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہاں جی، تو محبت سے، شفقت سے تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھائیں نا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پہلے بچے کو لاڑ پیار میں اتنا زیادہ اس کو آزادی دی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کروں صحیح ہے جی، اور پھر جب اچانک اس پر پابندیاں لگنی شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کل تک تو یہ سارے محبت کرتے تھے، آج مجھے کہتے ہیں یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور یہ نہیں کرنا، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بچپن سے ہی بچے کو پیار کے ساتھ سیدھے راستے پر بھی لگائیں، اس کو سہولیات بھی دیں، اس کو کھیلنے کا موقع بھی دیں، تو بچہ نارمل رہتا ہے۔ جب بچے کو آپ پہلے فل دے دیتے ہیں سہولتیں، آزادیاں، کسی قسم کی کوئی قدغن بھی نہیں لگاتے، تو پھر وہ بچہ اچانک ان کو قبول کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ تو دعا والدین کریں، صبح سحری کے ٹائم پر ان کے لیے دعا کریں، اور بچے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی چیک کرائیں کہ یہ چڑچڑا کیوں ہے، اور اگر کوئی دوائی کو سیرپ مل جائے تو وہ بھی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آمین۔ آگے پوچھا گیا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام نازیہ ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ میرے شوہر نے مجھے ایک فیصلہ واٹس ایپ پر سینڈ کیا اور بعد میں کوئی سٹیمپ نہیں دیا، وہ سعودیہ ہوتے، جو واٹس ایپ پر سینڈ کیا بس اس پر وہ سینڈ ہوا، ایک یہ بھیجا جی انہوں نے، کوئی ریٹرن پیپر نہیں دیا، اس پر نہ ان میں سائن تھے، پھر پیپر آیا جی جیسے وہ نیکسٹ میں لکھ رہی ہیں، فیک پیپر آیا تھا اور فیک بنا کر سینڈ کیا، تو بعد میں کہتے وہ چھوڑ دو اب صحیح بھیجوں گا، تو بعد میں ایک سادہ پیپر بھیجا، تو وہ پہلے میں شمار ہوا یا دوسرے میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا ہے۔ اب یہ بڑی مشکل ہے، ساری مشکل علماء کرام پر ڈال دیتے ہیں جی، اور خود آپ سچی بات بھی نہیں بتاتے۔ پہلی بات جو انہوں نے بتائی کہ واٹس ایپ پر آیا ہے تو وہ تو کنفرم ہو گیا نا،
व्हाट्सएप पर आ जाए, फ़ोन कॉल पे वो कॉल कर दें, मैसेज कर दें फ़ोन पर, किसी तरीके से भी खामद ने बीवी को तलाक कह दिया तो वो तलाक हो गई। अब उसके बाद दूसरा जो उन्होंने पेपर भेजा है, कितने अरसे बाद भेजा है ये भी नहीं बताया इसमें। पहली तलाक के बाद उन्होंने सुलह की है कि नहीं की ये भी नहीं बताया। उन्होंने इद्दत गुजर चुकी थी या इधर के अंदर भेजा ये भी नहीं बताया। तो अब हम सवाल का जवाब क्या दें? तो पहली तलाक जब हुई, अगर तो उसकी इद्दत के अंदर अंदर उन्होंने सुलह कर ली थी 3 माह के अंदर अंदर, तो फिर तो वो दूसरा पेपर भेजने के भी मजाज हैं, भेज सकते हैं। और अगर उन्होंने सुलह ही नहीं की तो वो पहली तलाक ही कन्फर्म होगी, उनकी बीवी ही नहीं रही थी, तो दूसरे के फ़ायदे कोई नहीं। और अगर उन्होंने सुलह कर ली, सुलह करने के बाद ये पेपर भेजा है, इसकी फिर 2 सूरतें हैं कि पहले वाले मैसेज को कन्फर्म करने के लिए भेजा है या ये नया वाला है। अब ये तो खामद बताएगा ना। अगर उसने वही व्हाट्सएप मैसेज को कन्फर्म करने के लिए भेजा था कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, लो अब ये स्टाम्प पेपर भी लो, तो फिर ये वही एक ही तलाक है पहले वाली। और अगर उन्होंने दोबारा भेजा है तो फिर ये 2 हो गई। और अब तीसरी मरतबा फिर सादा कागज़ पर भेजा है, फिर अब ये वही वजाहत करेगा कि भाई ये सादा पर भेजिए, ये पहले वाले स्टाम्प पेपर के कन्फर्म कर रहे थे या ये नया है। तो अब ये सारी सूरत हाल क्लियर होनी है खामद के बयान पर कि वो क्या कर रहा है। ठीक है। तो अगर वो सऊदीया में बैठ कर सिर्फ तलाक़ें भेज रहा है तो भाई वापस ही आ जा, क्यों घर बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह अकबर। तो ये जो दूर के रिश्ते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी ख़राबी है रिश्तों को निभाने में। तो या तो बीवी को बुला लें उधर या खुद आ जाए इधर, लेकिन पहले अपने रिश्ते को कन्फर्म कर लें कि बचा भी है कि नहीं। ठीक है। एक लाइव कॉलर है जी हमारे साथ, सईद सदमत एडवोकेट अटक से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरा मुफ्ती साहब से जी एक ये सवाल है कि जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आया कि जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान में सबको मतलब आप इस्लामिक किया जाए, इनको इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के तहत ये सारा अपना जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं जितने बैंक से वो गुजारें। तो इसके थ्रू एक मैंने खुद ही एक अप्लाई किया था इस्लामिक बैंकिंग है फैसल बैंक, उसके थ्रू कार फाइनेंस के लिए। तो वो जब मैं गया हूँ तो मैंने कहा जी अगर ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है तो मैं ये लूंगा, अगर ये इस्लाम के प्रिंसिपल के अपोजिट है तो फिर मैं नहीं लूंगा। जो वहाँ पे मैनेजर साहब थे फैसल बैंक के, वो मुझे कहते हैं जी अभी ये जो सिस्टम है ये सारा हमारा फैसल इस्लामिक हो गया है, तो अभी ये इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के तहत हम कार फाइनेंस करते हैं जितना भी है, तो ये जी इस्लामी असूलों के तहत है और आपने जो भी फाइनेंस करवाना है करवाएं, इसमें शरीयत के ऐन मुताबिक है ये सारा सिस्टम। तो मेरा ये सवाल था कि मुफ्ती साहब के कि आया मैं अगर उनसे वो कार फाइनेंस करवाऊं जिसका नाम वो जारा रखते हैं या सो ऑन कुछ भी रखते हैं उसका नाम, तो मतलब भाई वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है या ये नहीं हो कि ये मतलब उनके कहने के मुताबिक है कि ये शरीयत के मुताबिक है लेकिन वो आया इससे मुतनबा हो ये चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे भाई खुद एडवोकेट हैं जी जी जी। ये उनकी वो जो ब्रीक टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं उनको पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो भाईजान को थोड़ा सा वक्त निकालें, उनका फॉर्म लें, वहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन लिखी हूँ उनको पढ़ें, उनको समझें और जहाँ शरई रहनुमाई हो फिर फ़ोन करें। खाली बैंक के कहने से तो वो इस्लामी बैंक नहीं बन जाएगा, या जारा का नाम रखने से वो सारा जारा थोड़ा हो जाएगा। तो जो इस्लामी बैंकारी के लिए हो रही थी कानून साजी, अदालत ने बिल भी पास कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन बैंकों ने अभी उनसे मोहलत मांगी हुई है कि हम अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे, उसके मुताबिक डेवलप करेंगे, लेकिन हमें टाइम चाहिए। तो अगर कोई बैंक दावा कर रहा है कि जी हमने तो रातों रात उसको तब्दील कर लिया है, तो फिर तो उनके पास बड़ी जादुई ताकत है कि जो उन्होंने अपने सारे अकाउंट जो हैं फटाफट इस्लामी कर भी लिए हैं। तो बहरहाल ये दावा है, हमारे पास तो इसके सबूत की अभी तक कोई दलील मौजूद नहीं है, ना हमारे पास इतना वक्त, ना कोई सहूलियात है कि हम जाकर चेक करें। तो भाई साहब चूँकि ख़ुद वकील है माशाल्लाह, तो इनको चाहिए कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, अगर इनको कोई डाउट हो तो फिर उलमा इकराम से मशवरा ले लें। ठीक है। अच्छा बड़ी साहब, वो जो अभी हमने तलाक वाला मामला डिस्कस किया ना, उन्हीं बहन ने हमें 2 मैसेजेस किए हैं कि मेरी सास ने मजबूर किया मेरे शौहर को, और एक नोटिस आया 28 फरवरी को जो उन्होंने भेजा, और दूसरा 16 मार्च को, यानी वक्फे के बाद भेजा है। 1 माह का आप देखें ऑलमोस्ट गैप भी नज़र आता है। मैंने कभी उनके या घर वालों के साथ ज़रा भी सिर्फ हस्बैंड की वजह से मेरी सास ने उनको मेरे ख़िलाफ़ किया और डिवोर्स करवा रही हैं। उनकी मुझसे दूसरी और मेरी पहली शादी थी, उनकी पहली के साथ आई डोंट नो, आगे कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो भाई साहब की ये दूसरी शादी है, इसके बाद वालदा दूसरी भी ख़राब कर रही है। हाँ जी। तो अगर उस भाई साहब को अभी भी अकल नहीं आई तो फिर कब आएगी? कि पहला घर भी ख़राब हो चुका है, अब दूसरा भी ख़राब हो रहा है।
تو اگر وہ اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے تو پھر میرا خیال اس خاتون کو ہی صبر کر لینا چاہیے. خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف بھی نہیں دی. جی اس سے بڑا صبر اور کیا ہوگا کہ خامد باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ادھر گھر بھی سنبھال رہی ہے, بچے بھی سنبھال رہی ہے. تو اگر خامد اس کی یہ قربانی کو قربانی نہیں سمجھتا تو پھر میرا خیال ان کو صبر ہی کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ طلاق پر طلاق ہی بھیجے جا رہا ہے والدہ کے کہنے پر. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ مائیں پہلے بڑے شوق سے گھر بساتی ہیں بچوں کے, اور بعد میں ان کو برباد کرنے پہ بھی بنیادی رول ادا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرما دے. والدہ کو ماں کا رول اختیار کرنا چاہیے, گھر برباد کرنے والی ہستی کا نہیں. تو والدہ تو وہ ہوتی ہے جو ڈوبتے ہوئے گھروں کو بچائے, ٹوٹتے ہوئے گھروں کو جوڑے, بجائے اس کے کہ وہ ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کے رکھ دے. بڑی صاحب اگر یہی ماں اپنی بیٹی کے لیے سوچے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تو پھر رویہ 100% ایسے زاویہ گھوم جائے گا 180 کی ڈگری پر. اللہ المستعان. اچھا بڑی صاحب آگے زارا زروا پوچھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتی ہیں میرے بھائی کو شوگر ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کی عمر 14 سال ہے, کیا وہ اس کا فدیہ ہوگا؟ شوگر کی وجہ سے روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ 14 سال عمر ہے, ابھی تو جوان آدمی ہے, تو روزے کی وجہ سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. جی تو اگر وہ بے بس ہو جاتا ہے, شوگر کی وجہ سے شوگر لو ہو جاتی ہے اس کی اور برداشت نہیں ہو پاتا, تو پھر وہ فدیہ دے دے. جی ٹھیک ہے, پھر وہ فدیہ دے دے. لیکن اگر وہ نوجوان ہیں اور شام تک وہ صبر کر سکتا ہے تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر اور ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے, کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں ڈائلسس کا مریض ہوں 4 سال سے. اللہ آپ کو صحت دے. ٹی وی کا والیوم بند کروا لیں پلیز تاکہ بات پراپر ہو سکے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں 4 سال سے ڈائلسس کا مریض ہوں اور روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں, اور ویسے میں روزے رکھ بھی رہا ہوں. شروع سے میں نے رکھے ہیں, صرف 2 چھوڑے ہیں جو میں رات کو اور سوموار کو میرا ڈائلسس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازے. آمین. جی تو میرا یہ بھی شوق ہے کہ میں نا اعتکاف پہ بھی بیٹھوں, تو کیا اعتکاف پہ بیٹھ کے روزے کی حالت میں ڈائلسس کروا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے میرے بھائی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو مکمل صحت یاب فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. تو میرے بھائی کو چاہیے کہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر لے, کیونکہ ڈائلسس کے دوران کوئی روزہ ان کے لیے کسی مزید پیچیدگی کا باعث نہ بن جائے. جی اگر ڈاکٹر اجازت دے دے کہ آپ روزہ رکھ لیں, یا 2 روزے رکھے ہیں تو ایک چھوڑ دیں, وقفے سے رکھ لیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں سوموار اور جمعرات کو ڈائلسس ہوتے ہیں, تو بھائی جان آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے, اللہ آپ کو جو شوق جو ہے نا اس کا بھی اجر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ صحت کی حالت میں کوئی نیکیاں کرتا ہے, جی, یا وہ اپنے علاقے میں موجود حالت میں بہت ساری نیکیاں کرتا تھا, پھر سفر پر چلا گیا, اب وہ سفر کے دوران وہ اس کو موقع نہیں مل رہا, نہیں کر پاتا, یا وہ بیماری کی وجہ سے وہ تمام نیک اعمال جو صحت کی حالت میں کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا, تو اللہ اس کو برابر وہ پرانا اجر بھی عطا فرماتے ہیں. تو بھائی صاحب یہ بیماری سے پہلے اگر روزے رکھا کرتے تھے تو ان کو ثواب مل رہا ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اس طرح اپنے کو مشقت میں, اذیت ناک مشقت میں نہ ڈالیں. اگر ان کے لیے سہولت ہو, ڈاکٹر اجازت دے دیں, تو یہ 1 آدھ ہفتے میں روزہ رکھ لیا کریں اور باقی چھوڑ دیں. 2 تو انہوں نے چھوڑنے ہیں سوموار جمعرات کا, تو باقی میں بھی اگر ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا, پیچیدگیاں ہیں, تو چھوڑ دیں اور اعتکاف بھی نہ بیٹھیں. اعتکاف نفلی عبادت ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی اجر عطا فرما دیں گے. آپ دعائیں کریں, گھر میں رہ کر نفل پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. اور اعتکاف کے دوران اس طرح چھوڑ کر جانا بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. صوبیہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ رحیم یار خان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا پوچھیں گی؟ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے جو شوہر ہے نا, ان کو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, مطلب لڑکوں کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہاں جی, وہ مطلب ان کو ایک کے بعد ایک شکار ملتا رہتا ہے, کوئی 20 سال کا, کوئی 21 سال کا. اللہ اکبر. لیکن اپنی بیوی کے ساتھ پہلی شادی بھی ان کی اسی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی, کیونکہ وہ اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہن اب میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. میرے 2 بچے تو انہوں نے پیدا کر دیے, مطلب پہلی بیوی یہ کہہ کے گئی تھی کہ یہ نہ مرد ہے. اچھا تو بہن اب آپ جی پوچھیں, کیا پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں آپ, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ بھی 7 سال سے ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے ان کے, مطلب ابھی تو میں بیٹھی ہوئی ہوں بچوں کے نام پہ.
کہ بچوں کی زندگی نہ خراب ہو. یقین اپنی تو میری کوئی زندگی نہیں ہے نا. آئی ریئلی فیل سوری فار یو میری بہن. میں کیا کہوں آپ کو, آپ نے تو دل کو ہلا کے رکھ دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اور میں جواب لیتا ہوں جی بھٹی صاحب سے. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ میری بہن. ہمارے معاشرے کی قبیح ترین صورت, اس شخص کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے, معاشرے کا خوف بھی نہیں ہے. تو اس شخص کو اگر اللہ کا خوف نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے, تو ہماری یہ بہن اس اذیتناک زندگی سے کیوں گزریں؟ یہ بچے متاثر ہوں گے, جیسے جیسے سمجھدار ہوں گے وہ اپنے باپ کی حرکتیں دیکھیں گے تو وہ بھی متاثر ہوں گے. تو اس بہن کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ڈمنے میں ڈالیں, لڑکے کے والدین کو ڈالیں, کوئی خاندان کے بزرگ ہوں ان کو ڈالیں اور اس کو سمجھائیں. اور اگر خاندان میں کوئی بزرگ ایسا ہو جو اس کو پھینٹی بھی لگا سکتا ہو تو وہ بھی لگانی چاہیے کہ ان کو انسان کیوں نہیں بنتا یہ. اور اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو اس بہن کو اس سے خلا لے لینا چاہیے. ایسے غلیظ ترین انسان کے ساتھ زندگی جہاں عذاب بن جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ خلا لے کر کہیں اور شادی کر لیں. زندگی 7 سال ضائع کر دی ہے ہماری اس بہن نے. بڑا حوصلہ ہے کہ وہ سوچتی ہوں کہ شاید سدھر جائے, شاید سدھر جائے, لیکن ایسے جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کا سدھرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. اللہ ہدایت دے دے تو دے سکتا ہے, اس کے اختیار میں ہے. لیکن جب وہ انسان خود بھی کو پشیمان ہو, شرمندہ ہو اور وہ سیدھی راہ کی طرف آنا چاہے تب نا, تو اس بہن کو چاہیے کہ خاندان میں کوئی بزرگ ایسا ہو جو اس کو روک سکتا ہو, جو اس کو بچا سکتا ہو, جو اس کو سمجھا سکتا ہو, تو اس کے ساتھ ضرور رابطہ کریں اور ان کی رہنمائی لیں. اور بالفرض وہ تھک چکی ہیں, سارے حربے اختیار کر لیے ہیں, تو پھر علیحدگی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اپنی نئی زندگی سٹارٹ کریں. بالکل بالکل. بڑی صاحب ایسے شخص کے لیے دین میں کیا, اگر دین یہاں لاگو ہوتا جی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقتل الفاعل والمفعول بھی, ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ ایسے بندے کو پہاڑ کے اوپر لے جائیں یا کسی بلند بلڈنگ پر لے جائیں اور اوپر سے جا کر گرا دیں. شدید ترین سزا ہے اسلام میں, لیکن اسلامی حکومت ہو, اسلامی قوانین ہوں تب نہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. ایک لائیو کالر ہے جی, شامل کرتے ہیں. محمد اشرف صاحب ہیں بھکر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کا. فرمائیے کیا پوچھیں گے محمد اشرف صاحب؟ مفتی صاحب سے کال کرا دیں. جی سن رہے ہیں مفتی صاحب, آپ کو بولیے. وعلیکم السلام. ہاں بھائی جان, میں نے یہ ایک مطلب جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں آرمی سے ریٹائرڈ ہوں جی. میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں مہینے کا 30,000 روپیہ پینشن لیتا ہوں, تو میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا کیا اس کے اوپر میری کوئی زکوٰۃ بنتی ہے یا کتنی بنتی ہے؟ میں نے یہ اس سے مسئلہ پوچھنا تھا. جی بہت شکریہ محمد اشرف صاحب کال کرنے کا. اور کائنڈلی آپ سے پھر گزارش ہے جب بھی کال کریں ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں. آپ ہمیں بھی سنتے ہیں, اپنی آواز کو بھی سنتے ہیں تو سمجھ نہیں لگتی. سر 30,000 پینشن ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو عزت دے, رزق حلال دے, سکون اور اطمینان عطا فرمائے. تو موجودہ دور میں اگر 30,000 پینشن مل رہی ہے تو وہ اس کو کھائیں پئیں, اپنی ضروریات پر خرچ کریں. اور یہ کوئی ایسی بچت نہیں ہے کہ جو سال بھر پڑی رہے گی اور اس پر زکوٰۃ ہوگی. اگر تو یہ 30,000 آتا ہے اور ان کے مہینے میں وہ خرچ ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. بالفرض وہ سال کی زکوٰۃ ان کی پوری رقم پینشن کی 3 لاکھ 3.5 لاکھ پڑی ہوئی ہے, استعمال ہی نہیں ہوئی, دیگر وسائل ان کے ہیں, تو پھر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر ان کی وہ آتی ہے پینشن اور وہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹرانسمیشن بھی جاری ہے, لیکن آئیے نماز عشاء کی جانب چلتے ہیں, پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن دوبارہ سے شروع کریں گے. تو چلتے ہیں نماز عشاء کے لیے. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. مفتی مولانا محمد اجمل
बड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं नवीद निज़ामी आपके साथ हूँ। आपके सवालात का सिलसिला दोबारा से हम शुरू करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और गुजारिश यही, जब आप टेलीफोन कॉल करें तो आप छोटी बात करें और टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें। बड़ी साहब, मेरे पास एक और सवाल यहाँ पे आया है। मोहम्मद बिलाल लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है भट्टी साहब से कि मुझे अक्सर नज़र लग जाती है, कोई दम बता दें। हाँ, आखिर अगर तो वो सुबह शाम का अज़कार करते हों तो फिर तो नज़र नहीं लगनी चाहिए जी। तो उनको चाहिए कि सुबह और शाम 3 दफ़ा तीनों कुल जो आखिर वाले हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तीनों कुल 3 दफ़ा पढ़ें और 7 आयतुल कुर्सी मिला के तो अपने जिस्म पर दम कर लिया करें। ऐसे हाथों पर फूंक मार के तो सर से लेकर पाँव तक फेर लिया करें, सुबह भी और शाम भी। उसके अलावा जो नज़र बद का दम है ख़ास, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये पढ़ के 3 दफ़ा अपने ऊपर दम किया करें तो इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। ठीक है जी। आगे लिखते हैं एम आसिफ के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। पूछते हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह आपकी ज़िंदगी और सेहत में बरकत दे, आमीन। मेरा ये सवाल है कि अगर औरत अजान हो रही है और सर पर दुपट्टा ना रखे तो क्या उसको गुनाह होगा? औरत के सर पर तो दुपट्टा अजान के अलावा भी होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन अगर वो अपने घर में है, अपने महरम भाई हैं, बहनें हैं, बेटा है, उसके दरमियान है तो इतना ज़रूरी भी नहीं है। और अज़ान के साथ इसका तल्लुक़ नहीं है कि अज़ान हो। ये हमारे यहाँ रवाज है, अच्छा रवाज है वैसे तो जी, कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन अज़ान की आवाज़ सुनते ही सर ढाँप लेती हैं, लेकिन ये रवाज है, शरन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब नमाज पढ़ेगी तो फिर पूरे जिस्म को ढाँपेगी। उसके अलावा अगर वो अपने घर में है, घर के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पर अगर वो सर नंगा भी रख ले तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक, अज़ान के टाइम पे कवर ज़रूर करें। नहीं ज़रूरी, मैंने कहा अज़ान के साथ इसका तल्लुक़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, आगे पूछा गया, शेख साहब से पूछ दें, शरीयत में बहुत से अमल हैं करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा ख़ास अमल बता दें जिससे इंसान पूरी ज़िंदगी अमल करे ताकि ईमान सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो भी शरीयत के अमाल हैं वो ईमान की सलामती वाले ही हैं। तो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफ़ज़लुज़ ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो बंदा ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े भी, दिल में ईमान भी हो और इस पर कायम भी रहे, तो यकीनन वो ज़िंदगी के ख़ात्मे तक इंशाअल्लाह फिर इस पर साबित कदम भी रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हम उन लोगों को जो वाकई ईमानदार होते हैं, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, कि अल्लाह अपने मोमिन बंदों को दुनिया में भी साबित कदम रखता है, और जब उनकी मौत आ रही होती, शैतान आखिरी उसको दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा होता, उस वक्त भी साबित कदम रखता है। और जब वो कब्र में पहुँच जाते हैं, आखिरत के मराहल शुरू हो जाते हैं, तो अल्लाह उनको वहाँ भी इस्तकामत अता फरमाता है। तो ये ईमान पर कायम रहें, नमाज रोज़ा जो अल्लाह की तालीमात है, अहकाम, उन पर अमल पैरा रहें, तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में इस्तकामत ही इस्तकामत है इंशाअल्लाह। कासिम हसनैन लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह। जुम्मा के दिन की टोटल कितनी रकत है? 2 फ़र्ज़ के बाद लोग 4 सुन्नत पढ़ते हैं और फिर 2 सुन्नत, इस तरह टोटल 10 सुन्नत हो जाती हैं। वज़ाहत फरमा दें। जुमे वाले दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो ये है कि जो शख्स इमाम से पहले मस्जिद में आ जाए, और हुक्म यही है कि जुमे वाले दिन, निज़ामी साहब बहुत सारी बिशारतें हैं बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह, कि जो शख्स सुबह सवेरे जुमे वाले दिन गुस्ल करता है, खूबसूरत लिबास पहनता है, खुशबू लगाता है, बालों में तेल लगाता है, मिसवाक करता है, और फिर मस्जिद में अव्वल वक़्त सुबह ही चला जाता है, तो उसको इजाज़त है कि वो जितनी रकात नफल के तौर पर पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। कब तक? जब तक इमाम आकर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा नहीं हो जाता, वो पढ़ता रहे। और सहाबा कराम रिज़वान अजमाइन कहते हैं कि हम नबी करीम के आने से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 रकत करके पढ़ते रहते थे। जब आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो जाते फिर रुक जाते। अब उस दौरान अगर कोई बंदा आया कि खुतबा शुरू हो चुका है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को जो उस वक्त दाखिल हुए थे पूछा, क्या तुमने 2 रकतें पढ़ ली हैं तहियतुल मस्जिद की? उन्होंने कहा नहीं। तो आपने कहा उठो और 2 रकतें पढ़ लो। तो जो बंदा खुतबे के दौरान तशरीफ़ ला रहा है उसको 2 रकतें पढ़ने का हुक्म है कि वो पढ़ के बैठे। उसके बाद है 2 रकतें इमाम के साथ,
اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں کر کے 4 بھی پڑھی ہیں اور 2 بھی پڑھی ہیں. اگر گھر جا کر پڑھے گا تو 4 اور مسجد میں پڑھے گا تو 2, یا شاید اس کے الٹا ہے اور مجھے بھول رہا ہے شاید, تو 4 ہیں بہرحال. 4 رکعتیں پڑھے گا, گھر جا کے 4 ہیں, گھر جا کے 4 اور جو مسجد میں پڑھے گا تو 2. تو یہ ہے جمعے والے دن کی ٹوٹل نماز کہ 2 فرض ہیں اور نماز کے بعد 2 رکعتیں بھی ہیں اور 4 بھی ہیں. اور پہلے جو آ جائے اس کے لیے کھلی گنجائش ہے. حدیث میں آتا ہے فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ, اللہ نے جتنی مقدر میں رکھی تھی وہ پڑھ لے. سبحان اللہ. تو اس دن کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یعنی جتنی مرضی پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعتیں کر کے جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا آگے عبداللہ ذوالفقار علی لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے, اس کا نام عبداللہ ہے اور وہ ہر بات پہ بہت ضد کرتا ہے. اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ ضد کرنا چھوڑ دے. یہ ہم سے بار بار لوگ ضد کا وظیفہ پوچھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹ پر مختلف علماء نے ضد کے وظائف اپنے ان کو بتائے ہوئے ہیں. تو ہم سے بھی لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ اپنے پاس سے بتائیں. جی. تو معذرت خواہ ہیں کہ ہم اپنے پاس سے وظائف نہیں بناتے. تو ضد کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ بچہ آپ سے محبت مانگ رہا ہے, آپ اس کو محبت دیں. جب شروع سے آپ نے اس کو محبت کا عادی بنا دیا ہے, اب جب اس کو وہ پہلے والا پیار یا پہلے والی شفقت نہیں ملتی, کوئی دوسرا اور بہن بھائی ہے وہ شیئر کر رہا ہے, تو اب وہ ضد کرنے لگ جاتا ہے. یا اس کو آپ نے عادی بنا دیا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے آپ فوراً پورا کرتے ہیں. ایسے لاڈ بھی آپ نے کیے. اب جب وہ تھوڑا سا سمجھدار ہوا ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ملے گا, تو پھر وہ ضد کرتا ہے. تو اب جس طرح پہلے پیار دیا ہے اسی طرح محبت کے ساتھ اس کی اس ضد کو بھی آپ نے ہی کنٹرول کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس کو محبت میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں. یا بڑی صاحب سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ بالکل ہی محبت نہیں دی جاتی, بالکل اگنورنس ہو جاتی ہے. جب اس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو آخری حال پھر کیا ہوا کہ والدین کی, بہن بھائیوں کی وہ محبت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو جتنی آپ پہلے دے رہے ہیں اس کو آپ ڈبل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ ضد چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. محسن ارباب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ روزے میں بھول کے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, یہ تو موج ہے, 2 in 1 ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل او شرب ناسیا فلیتم صومہ. جو بھول کر, واقعی بھولا ہوا ہو, اس کو یاد ہی نہیں رہا, وہ باہر سے گرمی, آج کل گرمی تیز ہو رہی ہے نا, گرمی میں آیا, اس نے فریج کھولی اور پانی پی لیا اور پھر یاد اوف میرا روزہ تھا, تو کوئی بات نہیں ہے. فإنما أطعمه الله وأسقاه, یہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے اور پلایا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, وہ باقی روزہ پورا کر لے. جان بوجھ کر کھائے گا تو پھر روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھائی اب نارمل ہے, اس کی عمر 24 سال ہے, فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کا غسل ماما کروا سکتی ہیں؟ اللہ المستعان. بہت بڑی آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, حوصلہ دے اور ان کی اس مشکل کو آسان فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس بھائی کو چاہیے کہ اس کی نہانے کی ڈیوٹی کوئی بھائی لے لے. اس کو انڈر ویئر وغیرہ پہنا کر تو کوئی بھائی بڑا جو ہے وہ اس کو غسل دے. وہ بہن ہے, اور اگر مجبوراً کوئی موجود نہیں ہے تو پھر ماں تو ماں ہے, تو ماں بھی اس کے سطر کو ڈانپ کر, کوئی اس کو شلوار کوئی ایسی چیز باندھ کر سطر کو ڈانپ دیں اور پھر اس کو غسل دے دیں. ٹھیک ہے جی. ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں, محمد فاروق میاں والی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے آپ, ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. میرے بھائی سوال کیا آپ کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, آپ دونوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. جی بھائی میرا یہ سوال ہے کیونکہ ہم نیوان سے لیتے ہیں تو ہم دکان وغیرہ کاغذ وغیرہ گندم یہ وغیرہ کپاس وغیرہ کرتے ہیں نا. جی جی بولیے. گندم وغیرہ یہ کپاس وغیرہ کسی آڑتی وغیرہ دکانداروں کو دیتے ہیں تو اس کے پیسے اس وقت نہیں لیتے ہیں ان سے. ہم کو کہتے ہیں کہ جب اس کے پیسے ہمیں ایسے دام ملیں گے تو اس کے بعد ہم ریٹ وغیرہ کاٹیں گے. اچھا جی. تو جب ہم اس کا 6 مہینے بعد یا کبھی 7 مہینے بعد گندم وغیرہ کپاس کا جو ریٹ ہم مناسب ہوتا ہے اس وقت ہم ریٹ کاٹتے ہیں. تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے سود میں آتا ہے یا ہمارے یہ پروفٹ میں ہوتا ہے, حلال ہے یا حرام, اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے. سمجھ لگی کوئی بھٹی صاحب آپ کو؟ آپ اچھا آرام سے دوبارہ بولیے جو میں سمجھاؤں. آپ دیتے ہیں کپاس دکانداروں کو, وہ 5-6 ماہ بعد آپ کو رقم کی ادائیگی کرتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اچھا مناسب ریٹ ہے اس وقت کپاس گندم, ہم اس وقت ریٹ کاٹتے ہیں کہ ہمارے اس وقت ریٹ کاٹ دو. نہیں ہم اچھا دیتے ہوئے ریٹ طے نہیں کرتے,
फिर जब टाइम आता है तो फिर अपनी मर्जी से रेट लेते हैं? ले जाते हैं, हम कहते हैं ये इस वक्त सस्ती है, हम इस वक्त आपको नहीं दे सकते, वो ले जाते हैं, वो आगे जाके सेल कर देते हैं, हम उस वक्त रेट नहीं काटते। हम जब कहते हैं कि हम ऐसे गाँव मिलेंगे उस वक्त उसका अपना रेट काटेंगे। अच्छा, मुझे वैसे आई एम सॉरी बिल्कुल समझ नहीं लग रही, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहता हूँ वो रिटर्न कर ले, इसको लिख लेते हैं फिर जवाब देते हैं। एनीवे बहुत शुक्रिया कॉल करने का मोहम्मद फारूक साहब। अच्छा जी ठीक है, आगे है जी जुम्मा के दिन में मस्जिद में जाकर कितनी सुन्नतें पढ़ेंगे? अजान से पहले और बाद में तहियतुल मस्जिद के 2 नफल अलग से पढ़ने होंगे? अभी हमें डिटेल बताई है। हमारे यहाँ 2 तरीक़ाकार चल रहे हैं जुमा के लिए। उसमें एक तरीक़ाकार ये है कि इमाम साहब आकर उर्दू में ख़िताब फरमाते हैं जी, और घंटे के बाद फिर वो अज़ान पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं जी सुनतें पढ़ लें, और लोग 4 सुनतें पढ़ते हैं जी, और फिर उसके बाद इमाम साहब 2 खुतबात देते हैं अरबी में, और फिर जमात होती है, तो जमात के बाद फिर वो सुनते पढ़ते हैं। जबकि मैंने अर्ज़ की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक तरीक़ा है वो ये है कि आप मस्जिद में सुबह सवेरे पहुँचें, जल्दी पहुँचें, अव्वल वक़्त में पहुँचें, नहा धोकर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो बंदा सुबह सवेरे पहुँचा, नहा धोकर पहुँचा, खुशबू लगाई है, खामोशी से खुतबा सुना है, नमाज़ पढ़ के जब वापस जाता है तो उसको हर कदम पर 1 साल के रोज़े और 1 साल की तहज्जुद का सवाब मिलता है। तो ये जो जल्दी मस्जिद में पहुंच गया है, इसको इजाज़त है कि वो 2-2 रकत करके इमाम के खुतबा देने के लिए आने से पहले जितनी मर्जी पढ़ ले। जुमे और ज़ोहर में फ़र्क तो समझे ना जी। ज़ोहर के दिन जब आप ज़ोहर पढ़ रहे होंगे आम दिनों में, तो फिर ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत हैं जी। जुमे वाले दिन वो 4 नहीं हैं। जुमे वाले दिन आप 2-2 करके इमाम के आने से पहले जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ लें। यही तो मैंने अभी बयान किया कि अल्लाह के रसूल कहते हैं फसल्ला मा कुद्दिर लहू, उसके मुकद्दर में जितनी है पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। और फिर नमाज़ पढ़ेंगे इमाम के साथ, और नमाज के बाद 2 रकत अगर मस्जिद में पढ़ें तो 2, और घर जाकर पढ़ेंगे तो 2-2 करके 4 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो ये आपका सुन्नत तरीका है। ठीक है, एक लाइव कॉलर शामिल करते हैं। मिसेस अख्तर है लाहौर से, लाइन डिक्लाइन कर गई है जी, दोबारा ज्वाइन करेंगी। अच्छा जी, उनकी कॉल ये थी कि मेरा बच्चा माजूर है और बड़ा परेशान है, और वो कहती कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करता है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, रूहानी और जिस्मानी तमाम तकलीफ़ों से अल्लाह ताला उसको निजात दे दे। और वालिदैन जो इस तरह के बच्चे को संभाल रहे होते हैं ना, मुश्किल निज़ामी साहब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेशक बेशक ऐसी तो इसका अजर सवाब भी तो उनको मिल रहा है, अल्लाह ताला ढेरों सवाब देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, जो सब्र करते हैं अल्लाह उनको हिसाब किताब के बगैर अजर सवाब अता करता है। तो ऐसे बच्चे को संभालने वाले यकीनन बहुत खुश नसीब भी हैं कि अल्लाह उनको ढेरों अजर दे रहा है, और बच्चे के साथ शफ़क़त मोहब्बत कर रहे हैं, तो यकीनन इसको बहुत बड़ा अजर सवाब मिलेगा। हौसला रखें, सब्र करें, बच्चे के लिए भी दुआ करें। यकीनन वो जिस आज़माइश में है वो भी कुछ छोटी नहीं है, और वालिदैन उससे बड़ी आज़माइश में है। तो सब ही को अजर मिलेगा अगर इस बच्चे के साथ शफ़क़त करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इस बच्चे को सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, और वालिदैन की इस मुश्किल को आसान फरमा दे। आमीन। उनकी दोबारा कॉल आई और हमारे अंदर नेटवर्क में उन्होंने रिकॉर्ड की। उनका जो सवाल था, उन्होंने कहा कि बच्चे की उम्र 33 बरस है, 33 बरस का बच्चा है, और वो कह रही मैं उसकी वजह से क्योंकि तीमारदारी करनी होती मैं तरावी नहीं पढ़ सकती, मुझे गुनाह तो नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीम है ये माँ, ये माँ बहुत अजीम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो हमारी बहन ये जो नवाफल नहीं पढ़ पा रही, तो यकीनन अल्लाह इनको ये अजर देगा इंशाअल्लाह। हमने पहले हदीस बयान की थी कि जो बंदा हालत सेहत में और इकामत में जो नेकियां कमाता था, अब किसी मर्ज़ की वजह से नहीं कर पा रहा, तो अल्लाह उसका सवाब भी देता है। तो ये बहन अगर इस बच्चे की खिदमत की वजह से नवाफल नहीं पढ़ पा रही, तो इंशाअल्लाह अल्लाह इनको इसका भी अजर देंगे इंशाअल्लाह। तो ये उनकी खिदमत कर रही हैं, तो अल्लाह इनके हौसले को, इनकी हिम्मत को मज़ीद बढ़ा दे, और अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए और बच्चे को सेहत याब फरमा दे।
आमीन। वसीम सईद साहब का सवाल है, काफ़ी मरतबा हम रिप्लाई कर चुके हैं, लेकिन चूँकि आ गया तो मैं शामिल कर लेता हूँ। पूछते हैं कि जिसको ज़कात दे रहे हैं उसको बताना ज़रूरी है या बिना बताए भी दे सकते हैं? अच्छा, इस सवाल का जवाब समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि ये मामला दूसरे का है जी। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि ये ज़कात मुझे लेनी पड़ रही है। मेरे हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरा ही भाई आकर मुझे कहे कि भाई ये लो, ये रमज़ान था, मैंने ज़कात निकाली थी, चलो सोचा भाई को ही दे देता हूँ, तो ये लो ज़कात, लेंगे। उफ़, आप रोएंगे, चीखेंगे कि तू मेरा भाई है, तू भाई होकर मुझे ज़कात देने के लिए आया है, तो नहीं लेगा। और अगर आप उसी मोहब्बत के साथ जाएं, रमज़ान से पहले चले जाएं, क्यों दे रहे हैं रमज़ान में, रमज़ान से बहुत पहले चले जाएं, कहें भाई आपके हालात मुश्किल में, लो यार कुछ कर लेना, कोई ज़रूरत का काम कर लो, कोई घर की ज़रूरत पूरी कर लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। रमज़ान में जाएं, शफ़क़त से बच्चों पर सर के हाथ फेरें और थोड़े थोड़े पैसे बच्चों को दे आएँ, बहन को दे आएँ, भाई को दे आएँ। तो गिफ्ट करके देंगे तो वो सब आपका शुक्रिया अदा भी करेंगे और लेते हुए भी आसानी महसूस करेंगे। और अगर आपका मकसद उनको शर्मसार करना हो तो ये ज़कात के मकासद में से नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। आफिया शुएब लिखती हैं कि मुफ्ती साहब, क्या हम सुन्नत नफल नमाज के सजदे में बंदा अपनी ज़ुबान में दुआ मांग सकता है? हाँ, दुआ करना तो अल्लाह से महबूब अमल है ना जी। तो अरबी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में वो कौन सी चीज़ है जो आप मांगना चाहते हैं और वो उसमें नहीं है जी। आप कहें जी मुझे दुआएं आती नहीं हैं, तो कुरान मजीद की एक ही जामे दुआ याद कर लें जिसमें आपकी दुनिया और आखिरत की हर चीज़ शामिल है। आप घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आपको अल्लाह ने बच्चे नहीं दिए, बच्चे चाहते हैं, कौन सी चीज़ है जो आप मांगना चाहते हैं और उस एक दुआ के अंदर मौजूद नहीं जी। तो आप वो दुआ मांगें सजदों में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। ये जो लफ्ज़ हसना है, इसके अंदर दुनिया की हर नेमत शामिल है। तो आप जो चीज़ मांगना चाहते हैं दिल में उसकी नियत करें और दुआ यही पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपके लिए काफ़ी शाफी हो जाएगी। ठीक है जी। बुरहान खान कहने जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे एक सवाल पूछा गया है सर, मेरा सवाल ये है कि अफ्तारी के टाइम दुआ रोज़ा खोलने से पहले करनी चाहिए या बाद में? इफ्तारी करने से पहले करें बिस्मिल्लाह, अल्लाह तूने रिज़्क़ दिया है, नेमतें दी हैं, तेरा शुक्र मैं खाने लगाऊं जी। जब खा लें, खजूर खाएं, पानी पी लें, आपके जिस्म के अंदर ताकत आ जाए तो फिर दुआ पढ़ें शुक्र की, ज़हब ज़माउ वबतल्लतिल उरूक व सबतल अजरु इंशाअल्लाह, कि अल्लाह तेरे दिए हुए रिज़्क़ से प्यास भी बुझ गई है और मेरे जिस्म की अंतड़ियाँ भी तार हो गई हैं, अल्लाह अब तो अजर भी दे दे और मुझे उम्मीद है कि तू मुझे अजर भी देगा। तो भी ये दुआ पढ़नी है कुछ खाने पीने के बाद पढ़नी। हाँ जी। ठीक है। मोहम्मद खलील साहब हैं सियालकोट से जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया कॉल का। मोहम्मद खलील साहब पूछिए, क्या सवाल है भाई का? हाँ जरा, मैं सवाल ये था मेरा कि जैसे कि कुर्बानी की ईद है, उसका चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी तक करने तक कुछ मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी बाल कटवाने चाहिए या नाखून कटवाने चाहिए या कुछ कहते हैं कटा लेने चाहिए। क्या कुरान सुन्नत की रोशनी में इस पर जरा मुफ्ती साहब जी और भट्टी साहब को मेरा सलाम और रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जी। अभी ईद उल फितर भी नहीं आई और भाई ईद उल अज़हा के मसाले पूछ रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने तैयारी पहले से होना शुरू कर दी ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि इज़ा रअयतुमुल हिलाल ज़ुल्हिज्जा, जब आप ज़ुल्हिज्जा का चाँद देख लो, व अराद अहदुकुम अन युज़हिया, और तुम में से कोई बंदा कुर्बानी करना चाहता हो, फ़ला यमस्सा मिन बशरिही व शअरिही शैअन, तो फिर वो अपने बाल और नाखून वगैरह काटने छोड़ दें, अपनी जिल्द को छेड़छाड़ ना करें, मूँछों के बाल, सर के बाल, नाखून ये मत तराशे, ना काटे। वो उसके लिए है जो कुर्बानी करना चाहता है। अब जिसके पास कुर्बानी के वसाइल ही नहीं, कुर्बानी करना ही नहीं चाहता, या घर के दीगर अफराद हैं, वो क्या करें? वो काटना चाहें तो काट सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी हमारा जैसा अल्लाह के नबी के पास आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुर्बानी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मैं ये अजर कैसे लूँ? तो आपने फरमाया अगर तुम भी इस नीयत से अपने बाल रोक लो, नाखून रोक लो ये 10 दिन और ईद की नमाज पढ़ने के बाद काटो, तो तुम्हें भी तुम्हारी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा जी।
तो इस हदीस की सनद में कुछ उलमा कराम कहते हैं ज़ईफ़ है। तो जिनके नज़दीक ये सही है तो उनके नज़दीक फिर हर वो बंदा जो नियत करके बाल नहीं काटता, नाखून नहीं काटता, तो उसको भी कुर्बानी का सवाब मिलता है। ठीक है, तो इस तरह कोई अमल करना चाहे तो कर ले। ठीक है, जवाब तो आपने दे दिया बड़ी साहब, लेकिन एक चीज़ मैंने उचक लिया आपके जवाब में से। आपने कहा कि हमारी तरह का गरीब, ये आपने किसको कहा? अल्लाह की रहमत के सारे ही गरीब हैं, उसकी रहमत के सारे ही गरीब और फकीर हैं, उसके दर के हम सब फकीर हैं, वो गनी है। लेकिन मैं दुनियावी तौर पे कह रहा हूँ अल्लाह ताला सबको गनी फरमाए। और बड़ी साहब की गाड़ी आप देख लेना माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको गनी फरमाए, अपनी रहमतों से मालामाल फरमाए माशाल्लाह। ठीक है जी, फॉर द लाइटर नोट ये गुफ्तगू भी हुई। आगे एक सवाल पूछा गया, सर मेरा सवाल ये है कि खातून के शौहर ने उन्हें 2 तलाक दे दी हैं जो कि कंफर्म है, जबकि तीसरी तलाक का शक है, उन्हें ठीक से याद नहीं है कि दी या नहीं, क्या करना चाहिए? और मज़ीद वो कहती हैं ऐसे में शौहर के साथ रहना चाहिए या अलहदा हो जाना चाहिए? बराए मेहरबानी वजाहत फरमा दें, खातून बेहद परेशान। अल्लाहुल मुस्तआन। नामी भाई, यहाँ तक नौबत जाती क्यों है जी? तो तरफ़ैन को ही अपने रवैये पर गौर करना चाहिए कि घर बना बनाया क्यों उजाड़ रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, अब खुद भी परेशान है जी। तो इस सिचुएशन तक पहुंचने के वाले हालात को रोकना चाहिए जी। अब कन्फर्म कौन करेगा? खामद को तो ज़ाहिर कन्फर्म ही होता है कि उसने कितनी बार ये लफ्ज़ बोला है। शक तो बीवी को है ना, उसने हो सकता है सुना ना हो, उस वक्त वो मौजूद ना हो जिस वक्त खामद ने ये कहा था। तो खामद से कन्फर्मेशन मिलेगी, उससे कन्फर्म कर लें कि भाई तुमने 3 दफ़ा कहा है कि 2 दफ़ा। अब होता क्या है, हमारे यहाँ उमूमन मर्द हजरात जब देखते हैं कि उनका घर तबाह हो जाएगा, अब इस उम्र में है, दोबारा शादी भी नहीं होगी और इन बच्चों का क्या होगा, तो फिर वो झूठ भी बोलते हैं। और अगर वो झूठ बोलेंगे तो सारा गुनाह उसको है, अल्लाह, खातून को नहीं है। सारा गुनाह उस मर्द को होगा जो तलाक देने के बाद मुकर जाए कि मैंने तो दी नहीं है। कल क़यामत को जवाब दे भी वही होगा। और अगर कन्फर्मेशन के बाद वो बता देता है कि हाँ मैं 3 तलाक़ें दे चुका हूँ, तो फिर इस खातून का उस मर्द के घर में रहना कतन दुरुस्त नहीं है। अगरचे बच्चे भी हों तो इनको फौरी इलादा हो जाना चाहिए। ठीक है। आसिफ भट्टी साहब है शेखपुरा से जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब कॉल करने का। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर मुफ्ती साहब से जी, अगर जब हम जमात के अलावा खुद अपनी नमाज पढ़ते हैं जी, तो उसमें जो सूरत पढ़ते हैं वो बाज़ रात कोई गलती अगर हो जाती है आपसे जी, तो उस गलती का कोई कफारा या कोई तरीका कार अगर मुफ्ती साहब अगर रहनुमाई फरमा दें। जब एक आधी मतलब कि हम तिलावत फरमा रहे हैं, उसकी 6 आयत है या 7 है, तो उसमें से कोई एक आयत मिस हो जाती है जी, या कोई मुशाबा लग जाता है, तो उसके साथ क्या मामला है कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे या उसको क्या करेंगे? इसके बारे में जरा रहनुमाई। जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब कॉल करने का। सर फरमाइएगा। जिस नमाज की रकत में आपने सूरह फातिहा पढ़ ली है, और अमूमन ये तो हर बच्चे को भी याद होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरह फातिहा कफ़ायत कर जाती है उन सूरतों से जो बाद में पढ़ी जाती हैं जी। तो अगर बाद वाली सूरत में आपको आयत भूल गई है या बाद जो याद की होती है, तो आयत का एंडिंग जो है ना, इन्नल्लाह अलीमुन हकीम की बजाय हकीमुन अलीम बंदा पड़ जाता है। तो बाद दफ़ा ये वाली गलतियाँ उमूमन हो जाती हैं, तो इससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप आयत भूल गए और आगे निकल गए हैं, एक आयत आपसे छूट ही गई है, आपको पता ही बाद में याद आया, तो इसका कोई कफ़ारा नहीं है, कोई तवा नहीं, आपकी नमाज बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। अब्दुल गफ्फार मक्की साहब पूछते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहते हैं बेनमाजी को ज़कात दे सकते हैं? अल्लाहु अकबर व कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। देखें, ज़कात एक इस्लामी फ़रीज़ा है जी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि तुख़द मिन अगनियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राहिम जी। ज़कात जिस इलाके के उमरा से ली जाएगी वहाँ के गरीबों में तकसीम की जाएगी। अब मुसलमान हो और वो नमाज ना पढ़े तो इस्लामी शरीयत में तो इसका तसव्वुर ही नहीं है कि कोई बंदा मुसलमान भी हो और वो नमाज ना पढ़े। ऐसा तो तसव्वुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा कराम के दौर में सोचा भी नहीं जा सकता। बल्कि कुछ तारीख़ी रिवायात में ताइफ के बड़े लोग मजबूत थे, बड़े मालदार से, बड़ी फैक्ट्रियाँ थी इनकी, और ये निज़ामी साहब
ये वाहिद इलाका है जो मुसलमान फ़तह नहीं कर सके। पूरा अरब इन्होंने फ़तह किया, लेकिन जब ताइफ वालों का मुआसरा किया तो ये इतने मजबूत थे कि ये कड़ा बंद हो गए, खाने पीने का सामान वाफर है और नीचे आते नहीं जंग के लिए और ऊपर से तीर मारते हैं। अच्छा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा चलो छोड़ो इनको, अल्लाह इनको दया देगा, आज वापस चलते हैं। तो सहाबा कराम कहने कि अल्लाह के नबी इतने दिन मुआसरा किया, अब इनको ऐसे ही छोड़ जाएं? जी। तो आपने फरमाया अच्छा फिर सुबह जो है ना ज़रा ज़ोर से हमला करो। जब हमला किया तो उन्होंने ऊपर से जहर आलूद और आग के अंगारे मारे, बड़े सहाबा शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन वो दरवाज़ा खोलते नहीं, जंग तो हो तो फतह हो, वो ऊपर ही बैठे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा इन्ना काफिलून गदन इंशाअल्लाह, कल हम वापस जा रहे हैं। तो बड़े खुश हुए, कहने लगे जी ठीक है कल वापस जाते हैं। तो ये वाहिद कबीला है जो जंग के ज़रिए मुसलमान फतह नहीं कर सके, तो अल्लाह के नबी दुआ की वजह से इनको हदायत मिली। तो अगले साल इनका एक बहुत बड़ा वफ़द सरदारों की सूरत में मदीना पहुंचा। कहते जी हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो आपने फरमाया ला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन ला सलात लहू, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम क्या है, इस्लाम है ही नहीं। तो सहाबा कराम के दौर में वो कहते हैं हम बीमार आदमी को 2 बंदे उठा के सहारा देकर मस्जिद में ला के जमात में खड़ा करते थे। इतना बीमार भी नमाज घर में नहीं पढ़ता था, मस्जिद में पढ़ता था। तो ना पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज का मुसलमान वो कहे जी मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन ज़कात मुझे दे दो, तो ये अजीबोगरीब किस्म का मुतालबा है कि भाई मुसलमान हो तो नमाज सबसे पहले है। शहादतैन का इकरार करके जब मुसलमान बंदा होता है तो उससे पहले उसके फ़ौरन बाद क्या है, नमाज जी, रोज़ा भी उसके बाद है, ज़कात भी उसके बाद है। तो ऐसे शख्स को अगर आपके पास अब सिचुएशन ये है कि आपके महल्ले में आपके ज़िदोकार में 2 किस्म के ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, एक नमाज पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, अल्लाह का फरमाबरदार है, और दूसरा यही है जो नमाज भी नहीं पढ़ता और आपको महसूस हो कि ये गलत कामों पर भी आपकी ज़कात लगाएगा जी, तो फिर हक़ किसका ज़्यादा है? वो मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है। और अगर आपको ये उम्मीद हो कि दूसरे सारे माशाल्लाह मुस्तगनी हैं और एक गरीब यही है जो नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, और आपको ये एहसास हो कि अगर हम ज़कात देंगे तो ये हमारे करीब होगा, हमारी बात सुनेगा और आहिस्ता से ये नमाजी बन जाएगा, तो फिर भी उसको दे दें। और अगर कोई मुजरिम हो वाक़तन और आपको कन्फर्म हो कि ये ज़कात लेगा और ये गलत कामों में जाकर लगाएगा, तो ऐसे शख्स को ज़कात बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। एक लाइव कॉलर हैं जी, उनको शामिल करते हैं। इमरान बाबर हैं शेखपुरा से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इमरान साहब फरमाइए क्या सवाल है आपका? अच्छा, गुजारिश ये है कि मौलाना साहब से मैंने ये दरियाफ्त करना था कि हज़रत जी से कि जो आदमी रोज़े भी रखता है, तमाम हुकूकुल्लाह तमाम पूरे करता है, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखता, लोगों को तंग करता है, नजायज़ तकलीफ देता है और हक का नजायज़ माल खाता है और तरह तरह के मकरो फरेब करता है और इल्ज़ाम देता है दूसरे को कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। ये इसके बारे में से सवाल करना था कि हज़रत साहब फरमाएं इसके बारे में मसला शरीयत क्या है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर फरमाइए। अल्लाह अकबर। ऐसा शख्स बेचारा बहुत कम नसीब है कि नमाज़ें भी पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, ज़कात भी दे रहा है, हज उम्रे भी कर रहा है, तस्बीहात भी, तहज्जुद भी, कुरान की तिलावत भी, और हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर रहा। तो इन्हीं लोगों के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया था, मेरे साहबा क्या तुम्हें पता है कि मेरी उम्मत का मुफलिस गरीब फ़कीर क़यामत वाले दिन कौन होगा? तो साहबा ने अर्ज़ की दुनिया में तो हम उसी को फ़कीर समझते हैं जिसकी जेब में दिनार ना हो, दिरहम ना हो। आपने फरमाया नहीं, क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत का सबसे फ़कीर मस्कीन वो होगा जो पहाड़ों जैसी नेकियां लाएगा, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, हज भी, ज़कात भी, सब कुछ है जी, लेकिन हक इसका भी खाया हुआ है, इसको मारा हुआ है, इसका खून बहाया हुआ है, इसको गालियाँ दी हुई हैं, इसको तंग किया हुआ है, तो वो मज़लूम की भी लाइन होगी। तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे जाओ मज़लूमों से निपट लो, उनके साथ मुकम्मल करो। अब वहाँ देने के लिए ना डॉलर है, ना दिनार, ना दिरहम, कुछ भी नहीं, क्या है, सिर्फ नेकियाँ हैं। तो वो उनको नेकियाँ दे दे कि उनके साथ अपने मामला तो निपटाएगा और एंड पर फरिश्ते आकर रिपोर्ट देंगे कि नेकियां ख़त्म है, हकदार अभी बाकी हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि उनके गुनाह लेकर इस पर डाल दो। अब इसकी अपनी गलतियां भी थीं और उनके गुनाह भी इस पर डाल दिए गए और बिल आखिर ये हाजी, नमाजी, उम्रे करने वाला जहन्नम रसीद हो जाएगा। अल्लाह। तो इसलिए दुनिया में सिर्फ नेकियां करना ही ज़रूरी नहीं है, उन नेकियों को बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ज़ाया कैसे हो रही हैं? जुल्म के साथ, दूसरों के हकूक़ खाने के साथ, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ लगाने के साथ, दूसरों की ग़ीबत चुगली करने के साथ। तो इस भाई को अल्लाह का खौफ करना चाहिए, अपनी नेकियों की हिफाजत करनी चाहिए, और ये जितनी नेकियां करते हैं उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो जराइम हैं इनको इधर ही तरक कर देंगे तो ये इनकी आखिरत के लिए ज़रूरी है। ठीक। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, क्योंकि ट्रांसमिशन में एक वक्फे का टाइम हो गया, आपसे गुजारिश ये करनी है कि अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के लिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट कीजिए, और आपकी सपोर्ट से ही ये दीन की दावत दुनिया भर में, दुनिया के कोने कोने तक पहुँच रही है। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे, और अपनी गुजारिश जो आपके सामने मैं रखता हूँ वो ये है कि अपनी ज़कात, सदक़ात और एहतियात के लिए पैगाम टेलीविज़न को सपोर्ट कीजिए, राब्ता कीजिए और कार खैर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कॉल्स आप हमें कर सकते हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, लाइव जो यहाँ पे यूट्यूब पे मेरे पास ओपन है लिंक, यहाँ पे राब्ता कर सकते हैं और अपनी डोनेशन हम तक पहुँचा सकते हैं। बड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बड़ी साहब, एक क्वेश्चन हमें मौसूल हुआ है। मोहम्मद उस्मान इसहाक साहब हैं, लिखते हैं, नवीद भाई और मुफ्ती साहब, अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, अल्लाह आपको भी सलामत रखे भाई, आमीन। मेरा सवाल यह है कि जो औरत बवजह हमल रोज़े न रख सके तो उसकी दियत क्या होगी और वो कैसे और किस तरह दी जाएगी? इस पर लफ्ज़ दियत नहीं होता, कफ़ारा होता है, कफ़ारा होता है, फ़िदिया होता है। तो जो ख़ातून प्रेग्नेंट है तो उसकी दो सूरतें हैं जी। एक वो माँ है जो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, और वो रोज़ा रख सकती है, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए, ना उसके बच्चे को कोई ख़तरा है ना उसको कोई ख़तरा है, सेहतमंद है, रूटीन के मुताबिक वो रोज़ा रख सकती है, तो उसको रोज़ा रखना ही चाहिए। अल्लाह ताला इनको रुख्सत देने के बाद कहते हैं वान तसूमु खैरुल लकुम, रोज़ा रखो तो ये बहुत बेहतरीन है। हाँ, अलबत्ता जिस खातून की सेहत कमज़ोर हो, रोज़ा रखने की सूरत में वो मज़ीद वीक हो जाती है, उसके बच्चे को कोई ख़तरा हो और डॉक्टर्स कह दें कि नहीं आप रोज़ा नहीं रखें, तो इनके लिए ये फ़िदिया है कि वो 1.5 किलो अनाज एक दिन के रोज़े का वो किसी को दे दें। ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है जी, पूछा गया है कि नवीद भाई और मुफ्ती साहब, आपके प्रोग्राम की वजह से बहुत सी चीज़ों के जो शकूको शुबहात थे क्लियर हुए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूछना है कि अगर कभी कभार ऐसा हो कि औरत को हैज़ आदत से हट कर आए तो वो इस्तिहाज़ा होगा, क्योंकि मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा था तो वो कह रही थी कि कुछ मखसूस अद्वियात की वजह से, हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से ये जो प्रोसेस है कम ज़्यादा दिन हो सकता है, लेकिन वो हैज़ ही होता है। अच्छा जी, इसमें सूरत हाल ये है कि ये औरतों की मिसाल औरतें हमसे ज़्यादा जानती हैं जी। अगर लेडी डॉक्टर ने ये कहा तो ठीक ही कहा होगा जी, लेकिन अब हमें शरण करना क्या है जी। जिस खातून को ये माहवारी के दिन आ जाएं, वो नोट करेगी कि मेरे पिछले माह की रूटीन क्या थी, पिछले साल की रूटीन क्या थी, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, और इस दफ़ा उनको कहती है वो रूटीन के मुताबिक की बजाय थोड़े से हट के आ गए। मसलन अगर महीने के शुरू में आते थे तो अब महीना ख़त्म होने से ही चंद दिन पहले आ गए, या महीना शुरू होने के चंद दिन बाद आए हैं। अगर ये सूरत हाल तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो रूटीन से कुछ कम या ज़्यादा होते हैं जी तो उसमें मसला है। मिसाल के तौर पर अगर वो पिछले साल की उनकी रूटीन थी 6 दिन की, 7 दिन की, और अब उनको 4 दिन मेंसेस आते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं जी, तो अगर 4 दिन के बाद खून निकलना बंद हो जाए तो वो गुस्ल करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें। और अगर 7 दिन की उनकी मुसलसल रूटीन थी और अब 7 दिन के बाद भी आ रहा है तो शरीयत कहती है अपनी रूटीन के मुताबिक 7 दिन वो औरत नमाज छोड़ दे और 8वें दिन वो गुस्ल करके नमाज़ पढ़नी शुरू कर दे, पैड रख ले, और उसके दौरान भी खून निकलता है तो कोई मसला नहीं, एक वुदू के साथ वो एक नमाज़ पढ़ ले। ठीक है जी। आगे एक लाइव कॉलर है मोहम्मद नदीम साहब हैदराबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम भाई।
वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरा एक सवाल है जी कि बहैसियत मुसलमान हम सबका ये कीदा है कि रमजान के दिनों में शैतान को कैद किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मुआशरे में देखते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की बुराइयाँ और तरह तरह के जराइम हो रहे होते हैं रमजान में, तो उनकी क्या वजूहत है? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम साहब हैदराबाद से। शैतान कैद होता है लेकिन फिर भी कुछ शैतान फिर रहे होते हैं। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैंने ऐड किया है, वो बुराइयों के हवाले से कह रहे हैं। तो पहली तो बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक़्त जब शैतान जकड़ दिए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? मारादतुल जिन, सरकश जो बड़े बड़े हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और शतुंगड़े खुले ही रहते हैं जी। और दूसरी बात, सूरह अन्नास पढ़े तो उसके एंड में क्या आता है? मिनल जिन्नति वन्नास, शैतान जिन्नों में से भी हैं इंसानों में से भी हैं जी। तो वो जिन्नों वाले तो अक्सर बेशतर को कैद हो गए, को अपनी ड्यूटी से हट गए, लेकिन इंसान तो बाकी हैं जी। फिल्में आपको फराहम करने वाला ऑपरेटर तो मौजूद है, वो तो शैतान आकर ना आपको सप्लाई कर रहा, वो तो केबल ऑपरेटर कर रहा है ना जी। और देखने वाले देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो इंसानों वाले जिन से वो बदस्तूर ड्यूटी पर मौजूद हैं, तो उनसे बचना एक मुसलमान का काम है। रोज़ा है क्या? इमसाक, इमसाक का माना रुक जाना, किस बात से? खाने से भी, पीने से भी और शहवत के तमाम कामों से जी। तो जितने बुरे काम हैं उनसे रुकना ही रोज़ा है। तो इसलिए इंसान को सिर्फ शैतान की वजह से ईज़ी फील नहीं करना चाहिए कि अब वो तो नहीं है तो मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ। तो जो इंसान के अंदर का शैतान है उसको भी थोड़ा सा कैद करना है रमज़ान में, फिर ही रोज़ा होगा। ठीक है। कामरान अशरफ साहब लिखते हैं, फ़र्ज़ नमाज में सजदे की हालत या तशद्दुद में दरूद के बाद हम अरबी में कोई दुआ कर सकते हैं या सिर्फ कुरानी दुआएं ही की जा सकती हैं सजदे की हालत में? सजदे में जो मसनून दुआएं हैं वो सारी की जा सकती हैं। अगर जो अपनी दुआएं आपने करनी है बनावटी तो वो आप नवाफल में कर लें जी। और जो फ़र्ज़ नमाज है उसके सजदों में, तशहद में, अत्ताहियात में दुरूशी पढ़ने के बाद जितनी मसनून दुआएं हैं, जितनी कुरानी दुआएं, सब मांगी जा सकती है, कोई अर्ज नहीं है। ठीक है। आसिफ अमीन लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई और मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत ही मुनफरिद और बेलौस है, माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जज़ाकल्लाह जी। और आगे लिखते हैं कि आजकल के गए गुजरे दौर में आपकी काविश बारिश का पहला कतरा है, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको और भट्टी साहब को इस्तकामत दे, आमीन। और आगे लिखते हैं सुपर्ब, माशाअल्लाह जी। ये काविश, बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक। ये काविश असल में हम दोनों की अकेले की काविश नहीं है, ये काविश दिखाई हम दो दे रहे हैं, लेकिन हम दो के पीछे पूरी माशाअल्लाह 200 से बढ़ के की टीम है। हमारी मैनेजमेंट है, पैगाम टेलीविजन का नेटवर्क है, हमारे स्पॉट बॉयज़ हैं, हमारे कैमरामैन्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे आईटी के लोग हैं, हमारे किचन के लोग हैं, हमारे जेनेटोरियल स्टाफ है, हमारे गार्ड्स हैं और वो बहुत सारी टीम्स के लोग हैं जिनका शायद मुझे इस वक्त याद नहीं है। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं। अगर एक कैमरा हमारे पास भी हो तो हम ऐसे दिखाएं, सब दिखाएं। हाँ जी। कितने लोग हैं जो दो टांगों पर खड़े हैं जी, और कितने हैं जो बिल्कुल हैं हशाश विशाश। हम तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो बेचारे खड़े हैं इस प्रोग्राम के लिए। अल्लाह उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला आपको भी अजर अज़ीम अता फरमाए कि आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं और हमें सराह रहे हैं। ऐसे ही देखते रहिए और दीन समझते रहिए। असल जो हमारा मोटिव है, जो हमारा मकसद है वो ये। एक लाइव कॉलर को शामिल करते हैं जी, अब्दुल रहमान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। जी जी भाई। वालेकुम सलाम जी। जी बहुत शुक्रिया, फरमाइए। जी जनाब। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद करना है आपने, फिर बात हो सकेगी हमारी। हो गया, बंद कर गए जी, आप फरमाइए। जी जनाब दा किसी बंदे नूं ना 97 जना रुपया 6 लाख रुपए दिता ही कारोबार वास्ते। अच्छा जी। वो चल गया ना कि वो जी अपने नो थोड़ा जिहा ना डिस्टर्ब हो गया मैं जान के ते चल गया जापान। अच्छा जी। उत्थे कारोबार करता, इत्थे भी कारोबार करता रहा, लोगों को पैसे भी कारोबार अपना करता रहा, बिजनेस करता रहा। ते हुण मैं आन के ना उनको ना उन्होंने कहा मेरे पैसे ही ना मैनू उस वक्त दे हिसाब ना दे, तू मेरा कारोबार करता रहा, कोई तेरा बिजनेस नुकसान नहीं होया, कारोबार च वाधा घाटा नहीं होया, कोई सिलसिला नहीं बनया, ते मैनू ना अज जिहड़ी हुण दी वैल्यू हिसाब नाल मैनू पैसे दे। ते तुसीं कोई मुनाफा भी लैंदे रहे हो? ले ही नहीं। हाँ जी। तुसीं कोई मुनाफा भी लैंदे रहे हो उन्हां कोलों? नहीं नहीं, मुनाफा कोई नहीं लिया। अच्छा, ते हुण ओह की कहंदे ने कि मैं ते ले ही नहीं। हाँ मैं नहीं।
ٹی وی کا والیوم بند کریں. حالے وہ پوچھیے اور کو اس وقت کے حساب سے لینے چاہیے کہ اس وقت کے حساب سے لینے چاہیے کوئی 27 سال ہو گئے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرندہ جی. وہ کہہ رہے کہتے 96 میں دیا تھا 6 لاکھ روپیہ. 96 میں یعنی 24 اور 4 28 سال ہو گئے. ہاں جی آلموسٹ. وہ جو 96 میں وہ تو کروڑوں میں ہے نا. ہاں جی وہ تو یہ ڈی ویلیو جو ہو گئی تو اب اس کا حل انہوں نے دیا تھا کاروبار کے لیے. اچھا یہ نہیں انہوں نے بتایا قرض تو نہیں دیا تھا, انہوں نے دیا تھا, انہوں نے پروفٹ بھی کوئی نہیں لیا آج تک بقول ان کے. اگر تو دیا تھا کاروبار کے لیے تو کاروبار میں تو طے ہونا چاہیے تھا بھائی پرافٹ لاس کیا ہے. جی اگر طے نہیں کیا تو اسلامی احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ نقصان اٹھائیں گے. اور اگر دیا تھا قرض تو قرض پر تو اضافہ شریعت لینے کی اجازت نہیں دیتی. قرض دیا تھا اب اتنا عرصہ ہو گیا اس نے واپس نہیں کیا تو یہ اس کی غلطی ہے, یہ بھی اس کا گناہ ہے کہ اس نے واپس کیوں نہیں کیا. لیکن یہ بھائی زائد نہیں لے سکتے. جتنے پیسے دیے تھے 96 میں آج بھی وصول کریں گے تو اتنے ہی کریں گے. ہاں اگر پیسے دیے ہوتے سونے کی صورت میں, دینار دیے ہوتے, درہم دیے ہوتے, ڈالر دیے ہوتے, تو پھر وہ آج بھی ڈالر ہی اس سے اتنے لے سکتے ہیں, اتنا سونا لے سکتے ہیں. قیمت کتنی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے جتنے تولے سونا دیا تھا اتنے تولے لے لیں, جتنے ڈالر دیے تھے اتنے لے لیں. اور اگر روپے دیے تھے پاکستانی کرنسی تو پھر لیں گے بھی اتنے ہی جتنے دیے تھے. اور اگر پارٹنرشپ کی تھی تو پھر وہ طے ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہے. اور اگر پارٹنرشپ میں طے کچھ بھی نہیں کیا, بس ایک بندے کو پکڑا دی یار اپنے کاروبار میں لگا لے, اور اس نے لگا لیے اور کچھ بھی نہیں دیا, اور آج جب واپس لینے لگے گا تو پھر وہ اپنی اصل رقم ہی لے سکتے ہیں. پرافٹ کوئی نہیں ہے, اس نے دیا نہیں ہے, لیں گے کیا. ٹھیک ہے. آگے کامران اشرف صاحب دوبارہ سے پوچھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں یا نماز شروع ہونے سے پہلے پیشاب آ جائے اور اتنا ہو کہ بندہ کنٹرول کر سکتا ہو تو کیا اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے ساری ڈیٹیل سمجھائیں. وہ کہتے ہیں ساری ڈیٹیل کیا ہوتی ہے؟ اب اس میں اور کیا ڈیٹیل ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو منع کیا ہے کہ وہ اس حالت میں نماز پڑھیں کہ ان کو قضاء حاجت کی شدید ضرورت ہو جی, یا ان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو. تو ایسی حالت میں ڈسٹرب ہوں گے نا, توجہ نہیں ہوگی تو نماز تو پورے یکسوئی نہیں ہوگی. تو آپ نے منع کر دیا کہ کوئی بندہ پیشاب کو روک کر قضاء حاجت کو روک کر نماز نہیں پڑھے. ایون اتنا مزیدار فتویٰ دیا سعودی عرب کے شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ, بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا جی بیت اللہ میں 1 لاکھ سے بھی افضل نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک نماز کا, ادھر اذان ہو گئی, ادھر نماز بھی جلدی ہو جاتی ہے, اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اب اگر وضو ٹوٹ جائے اور وضو کرنے کے لیے جانا پڑے وہ باہر واش روموں میں دور تک جانا پڑے تو نماز تو گزر جائے گی. ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں اگر واش روم آپ کو آیا ہو تو اللہ کے نبی نے چونکہ منع کیا ہے اس حالت میں نماز پڑھنے سے, تو بے شک بیت اللہ میں آپ کی نماز فوت ہو جائے آپ کو پہلے وضو کرنے جانا چاہیے. تو پیشاب کو قضاء حاجت کو زبردستی روک کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے. پہلے قضاء حاجت کریں اور پورے سکون کے ساتھ نماز ادا کریں. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے کہ میں اگلے کالر کو لائن پہ لوں, آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ, صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے. آپ جتنا زیادہ اس کار خیر میں حصہ لیں گے اس کا آپ کو اتنا ہی خود کو فائدہ ہے, اور آخرت میں آپ دیکھیے گا کتنے گنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن دیں گے. افضال احمد حافظ آباد سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے بھائی جان, آپ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ بھائی, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ جو وکلاء برادری ہے یہ رمضان شریف میں اپنے عدالتی امور میں جو ہے اپنے جو ہے مختلف جو ہے اپنا کرتے ہیں, ان کے روزمرہ کے معاملات ہیں, تو روزے پر کیا اثر پڑے گا ذرا کائنڈلی یہ بتا دیں, کیونکہ وہاں پہ جو عدالتی امور ہیں اس میں بندے سے کچھ نہ کچھ ضرور ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے جس سے روزے میں فرق آ جاتا ہے. تو کائنڈلی اس پہ ذرا مفتی صاحب سے جو ہے نا وہ آپ ذرا افضال احمد صاحب ہم سمجھ نہیں پا رہے, ذرا کھل کے بتائیں نا, گڑبڑ کیا مطلب آپ کا؟ جھوٹ بولا جاتا ہے یعنی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی چلتا ہے, وہاں پہ رشوت بھی چلتی ہے, وہاں پہ جو عدالتی امور ہیں ان میں سارے معاملات چلتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. فرمائیے سر. اب اس میں ہمارے فرمانے والا چھوڑا ہی کیا ہے؟ ہاں جی, ساری باتیں تو انہیں خود بتا دی اور انہیں پتہ بھی ہے. جھوٹ بولنا ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, رشوت لیتے ہیں یہ بھی کبیرہ گناہ ہے, اگر عدالتی فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. سب کچھ تو انہوں نے خود بیان کر دیا ہے, وہ ہمارے لیے کیا ہے جو ہم بیان کریں؟ تو یہ ہماری بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں
ہماری عدالتوں کا بھی یہ حال ہے کہ 200 روپے میں آپ کو گواہی کے لیے کسی قسم کی بھی گواہی دینی ہے، آپ کو عدالت کے اندر سے گواہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس سے حقوق لوگوں کے ان تک نہیں پہنچ رہے۔ ندامی بھائی ایک بزرگ آدمی جنہوں نے ساری زندگی باہر گزاری اور محنت مزدوری کر کے وہاں سے پیسے بیچتے رہے اور یہاں ایک مکان بنایا۔ جی اب جب وہ بڑھاپے کی عمر میں واپس آئے، وہ لالچ کی انتہا دیکھیں، بیوی کہتی ہے اب آپ نے آ کے کیا کرنا، ادھر ہی رہو۔ اللہ اکبر۔ بچے کہتے ہیں بابا اب ہماری شادیاں ہو گئی ہیں تو اب یہ گھر ہمارے لیے ہے، آپ نے کیا کرنا ہے آگے؟ اس ظالموں ساری زندگی تمہارے لیے وہ ادھر کماتا رہا ہے تو اب تو آنے دو۔ تو وہ بدقسمتی سے بیوی اور بچوں نے ملی بھگت سے وہ مکان اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا اور والد صاحب کو گھر سے نکال دیا۔ اب والد صاحب نے لوگوں کے کہنے پر کیس کر دیا۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب جس دن آپ کا وکیل اور مخالف پارٹی کا وکیل دونوں کٹھے موجود ہوئے ایک ہی تاریخ میں آپ کا یہ ہم فیصلہ کر دیں گے۔ کتنا عرصہ لگا ہوگا یہ فیصلہ کروانے میں؟ سال لٹیگیشن چل رہی ہے، 6 سال تک دونوں وکیلوں کی ملی بھگت دیکھ لیں کہ وہ کبھی کٹھے حاضر ہی نہیں ہوئے، اور بالآخر اس بوڑھے غریب مسکین مجبور شخص نے اپنا کیس واپس لے لیا کہ میں اتنی فیسیں نہیں دے سکتا، اتنی تاریخیں نہیں بھگت سکتا، میں وہ مکان چھوڑتا ہوں۔ اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ تو اتنا ظلم وہاں ہو رہا ہے جہاں سے عدل کی امید تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید تعلیمات ہیں کہ اس ظلم پر قیامت والے دن جو ان کا حال ہوگا اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ تو بھائی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، رشوت بھی لی جاتی ہے اور ظالمانہ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں عدل و انصاف بھی تو ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو اچھے لوگوں کو اللہ بڑھائے، ان کو توفیق دے اور یہ نظام بدل جائے تو الحمدللہ، وگرنہ ظلم کرنے والوں کے لیے ایک دن وہ بھی ہے جب ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، ان کو اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہے۔ جی امارہ رحیم یار خان سے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ کال کا، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کل بھی میں نے پوچھا تھا کہ لکوریا کا مسئلہ ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوری، لیکوریا کا مسئلہ ہو تو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ سوال کرنے کا۔ جی وہی جیسا کل ہوا تھا کہ جو عورتوں کو پرابلم ہوتی ہے لیکوریا کی، ہاں تو وہ روزہ رکھ سکتی ہاں جی، لیکوریا میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے، اس کی پراپر دوائی بھی لیں اور روزے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا وہ کہہ رہی کہ مسلسل 3-4 سال سے ہے اور وہ علاج بھی کروا رہی لیکن ٹھیک آرام ہے، نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، تو روزہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، روزہ اس کو رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آگے عبدالستار محمدی لکھتے ہیں گریٹ ماشاءاللہ شیخ اجمل بھٹی صاحب، جزاکم اللہ خیر، اضحک اللہ سنک، ماشاءاللہ۔ اچھا میرے بارے میں بھی لکھ دیا انہوں نے، ماشاءاللہ گریٹ پرسن نوید نظام صاحب، جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ محمد ضیاء لکھتے ہیں غیر معقدہ 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ کیا غیر معقدہ سنتوں میں درمیان والے تشہد میں اتحیات کے بعد درود اور دعا بھی پڑھاتے ہیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر دوبارہ ثنا پڑھنی ہوتی ہے؟ دیکھیں جب 4 رکعت آپ مسلسل پڑھیں گے نا، درمیان میں تشہد بیٹھے، اچھا یہ جو فرق ہم نے رکھا ہوا ہے کہ 2 کے بعد جو تشہد بیٹھیں گے اس کے اندر دعائیں نہیں کرتے، اور جو 4 کے بعد تشہد ہوگا اس کو دعائیں کرتے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا ہی بنایا ہوا ایک خود ساختہ طریقہ ہے۔ پہلے تشہد میں بھی آپ اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور جتنی دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، آپ کی نماز ہے، آپ کے رب کا اور آپ کا تعلق ہے۔ چوتھی کے بعد بھی جتنی دعائیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، اور تیسری رکعت کے بعد اگر آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں، آپ نے 2 پر سلام نہیں پھیرا، تو تیسری پر جب کھڑے ہوں گے تو ثنا پڑھنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کنٹینیوس پڑھ رہے ہیں نا۔ تو ثنا نماز کے ابتدا میں پڑھی جاتی ہے، تو ابتدا میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو تیسری رکعت آپ کی کنٹینیوس جاری ہے، تو اس میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں، دوبارہ سے ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کال لائیو کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ شمائلہ صاحبہ ہیں سیالکوٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی میری بہن میں ٹھیک ہوں، فرمائیے کیا پوچھیں گی؟ بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ نا وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ جو غریب ہے جن کو فطرانہ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ وہ کسی نے نہیں دیا تھا، لیکن وہ اب وہ اتنے پریشان ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، 5 وہ لوگ ہیں تو فطرانہ وہ نکال نہیں سکتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا جی ٹھیک کیا ہے، وہ یا نکال کے وہ خود سے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر وہ نکال کے ان کے لیے نکالنا ضروری ہے،
या वो ना निकालें? ठीक है, ठीक है, ठीक है तुम बता देंगे जी, अभी बता देते हैं। बहुत शुक्रिया। जो गरीब आदमी है, मिस्कीन है, वो दूसरों से फितराना ले सकता है, लेना चाहिए उसको कि वो गरीब आदमी है, लेकिन जो मिकदार वो दूसरों से लेगा उसमें से अपना 2.5 एक साथ जो 2.5 किलो वो किसी दूसरे गरीब को दे दे, उसका भी संवर जाएगा। तो ये एक चेन है कि आप दूसरों से ले भी रहे हैं और अपना देना भी है। और बिलफर्ज आपके इलाके में इनसे ज़्यादा कोई गरीब आदमी मौजूद ही ना हो तो किसी दूसरे इलाके में भेज दें। पाकिस्तान में तो गुर्बत गली गली है, नुक्कड़ नुक्कड़ में मौजूद है, तो किसी भी गरीब को अपना भी दे दें, खुद ले लें दूसरों से और अपना किसी अपने से ज़्यादा गरीब आदमी को दे दें। अच्छा, वो कन्फ्यूजन ये थी हमारी बहन को कि हमारे पास या जिनके भी गरीब लोग हैं अपने खाने को नहीं है, वो फितराना कैसे निकालेंगे? अगर है ही नहीं जी, मैं जी, पहले जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर वो दूसरे उनको देते हैं, उनके पास माल आ जाता है तो वो अपना भी दे दें। और अगर उनके पास यही सूरत हाल, अल्लाह ताला उनको अपने रिज़्क़ से, वसी रिज़्क़ से, हलाल रिज़्क़ से माला माल फरमाए। और ऐसे ख़ानदानों को देखना चाहिए, उन अहबाब को जो ऐसे ही हर आते जाते को राशन के बोरे उठवा रहे हैं कि लो जी राशन तकसीम हो रहा है। भाई ऐसे घर देखो ना, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे शर्म के मारे मांगते भी नहीं हैं, बाहर किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करते, और घरेलू हालात भी ऐसे हैं। तो इन लोगों तक, उन लोगों को पहुंचना चाहिए जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। ठीक तो जब इनको किसी से इमदाद मिल जाए और वाफर मिल जाए तो उसमें से अपना दे दें। और बिलफर्ज इनके पास अपने खाने को कुछ नहीं है तो फिर वो मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है, बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है ना दें। तारिक साहब हैं लाहौर से जी, इनको शामिल करते हैं अपने ट्रांसमिशन में। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जी, तो भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। मुफ्ती साहब ठीक है माशाल्लाह? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये सवाल ये था कि सजदे में दुआएं क्या की जा सकती हैं जो तशहहुद में की जाती हैं? अच्छा जी, ठीक है जी। मसनून दुआएं हमने अर्ज़ किया कि सजदे के अंदर मसनून दुआएं जो अल्लाह के नबी से साबित हैं, जो कुरान मजीद के अंदर आई हैं, वो सारी दुआएं सजदे में की जा सकती हैं। ठीक है। आगे सर सवाल है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वजह से अमूमन मुझे सहरी खाने में इतनी ताख़ीर हो जाती है कि अजान के 10-10 मिनट बाद तक मैं खाना खाती रहती हूँ, क्या मेरा रोज़ा ठीक होगा? सुभान अल्लाह। बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको मैनेज किसने करना है जी। तो ये जो अजान ख़त्म भी हो गई है तो उसके 10 मिनट बाद तक भी खाती रहती हैं, तो ये कतन दुरुस्त नहीं है। जब अजान हो गई है तो उनको सहरी ख़त्म कर देनी चाहिए। अब ये मैनेज तो उन्होंने करना है, बच्चे छोटे हैं तो थोड़ी देर पहले, अगर 10 मिनट लेट होती हैं तो 10 मिनट पहले जागें। बच्चों को भी फ़ारग करने के बाद ख़ुद भी खाना है, तो खाने की लिमिट वही है कि अजान हो जाए तो बंद कर दें। अच्छा नहीं भट्टी साहब, एक चीज़ और भी है ना, जब बच्चों ने रोज़ा नहीं रखना तो सहरी में वो खाना है उन्होंने तो ये थोड़ा नहीं, पहले खा लें। बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो उठते ही क्यों हैं? हाँ जी। दूसरी बात, बेलफर्द अगर वो उठते भी हैं जी, उनको फीडर वगैरह बना कर देना है, उनको भी खाना साथ देना है, ठीक है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैनेज तो इस बहन ने खुद ही करना है ना जी। तो ये 10, 15, 20 मिनट पहले उठ जाएं। और खाली बहन ही नहीं, वो भाई भी जिनके बच्चे हैं, भाई साहब हैं, वो भी तो मैनेज करें, उनको भी तो करें ना, कि थोड़ा सा मुशक्कत वो भी कर लें, वो भी करें बिल्कुल। और ये जब दूसरों को खिला रही होती हैं तो एक नवाला उनके मुंह में, एक नवाला अपने मुंह में, और फिर 10 मिनट तक खाते ही रहना, ये भी अच्छा खासा खाने की मिकदार है। मेरा ख्याल 10 मिनट में तो अगर पहले खाएं तो 5 मिनट में भी खाया जा सकता है। तो इतनी ताखीर जायज़ नहीं है, इससे रोज़ा ख़राब हो सकता है। ज़फ़र शेख साहब है जी हमारे साथ लाइन पर कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 छोटे सवाल थे मुफ्ती साहब से जी। एक तो ये है कि वाजिब और फर्ज में क्या फ़र्क है, नमाज जो पढ़ते हैं हम जी, और दूसरा गैर मौक़दा और मौक़दा में क्या फ़र्क है, और अगर ये सुन्नतें जो थी ये रसूल पाक के वक्त में थी या नहीं थी? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। हाँ, ये भाई की बात, बुजुर्गों की बात बड़ी अच्छी है कि ये जो हमने फ़र्क कर देना कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, ये मौक़दा है, ये गैर मौक़दा है, तो ये सारे फ़र्क हमने किए हैं। तो सीधा सा मसला है भाई कि जहाँ आपकी सुन्नत और आपका तरीका आ जाए वहाँ करो, जहाँ मना आ जाए वहाँ रुक जाओ। तो इन इस्तिलाहात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बुज़ुर्गों की बात 100% दुरुस्त है कि हम इस मौक़दा और गैर मौक़दा, फ़र्ज़ और वाजिब के चक्रों में पढ़ते ही क्यों हैं? आवाम के लिए क्या है? ये वो इस्तिलाहात हैं जो उलमा पढ़ें, मदारस के तालिब इल्म पढ़ें, उनके मुताबिक इल्म हासिल करें। तो आवाम के लिए सीधा सादा कुलिया यही है कि जहाँ अल्लाह के नबी का कोई तरीका मौजूद हो कि आपने ये काम किया है वो कर लें, और जहाँ जहाँ आपने रोका है वहाँ से रुक जाएं। ज़िंदगी आसान है। ठीक है जी। आगे रमज़ान खान साहब लाहौर से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से
وطر میں جس احباب کو وطر کی دعا نہیں آتی وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بھائی کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ جب آپ نے ایک لمبی نماز یاد کر لی ہے تو وطر کی دعا کون سی اتنی طویل ہے کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے ماشاءاللہ جب سے بالغ ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے وہ دعا اب تک کیوں یاد نہیں کی؟ تو یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابھی بھی اگر آپ یاد کرنا چاہیں گے تو 1 دن میں یاد ہو جائے گی، 2 دن میں یاد ہو جائے گی، چلیں ہفتے میں ہی کر لیں، ایک سورت کر کے ساری زندگی کے لیے نہیں، وہ وطروں کی دعا کی بات کر رہے ہیں، دعا کی بات کر، ٹھیک، تو ساری زندگی کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یاد کرنی چاہیے، جب تک یاد نہیں ہے دعا کے بغیر بھی وطر بالکل صحیح ہیں، پڑھ سکتے ہیں ایسے۔ ٹھیک ہے، محمد عثمان اسحاق پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مختلف پڑھی جائیں گی یا ایک ہی پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی سورہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگر آپ ایک ہی کو ریپیٹ کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صحابی پوری رات نوافل میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے تھے جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک دن ایک نماز میں ساری رات ایک ہی آیت بار بار پڑھی ہے، ایک ہی آیت، تو جائز ہے۔ 2 مختلف صورتیں پڑھ لیں، ایک ہی صورت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آخر والی جو 2 رکھتے ہیں فرضوں کی یا سنتوں کی، تو ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، صرف سورہ فاتحہ ہی کافی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، آپ نے سوالات کے جوابات دیے، اللہ خوش رکھے، اور ہم کل پھر آپ کو ایسے ہی بلائیں گے، ہم اکٹھے بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ ایسی محفل میں باذن اللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور جاتے جاتے پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا جاؤں کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے لیے پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ سپورٹ کیجئے، ہم سے رابطہ کیجئے، ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے۔ نمبر ڈسپلے پہ آ رہے ہوتے ہیں، آئدر آپ واٹس ایپ پہ آ جائیے، ڈائریکٹ ڈائلنگ نمبر پہ آ جائیے، یا ہمارے یوٹیوب پہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، کم فارورڈ آگے آئیے، رابطہ کیجئے، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، اس میں آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پیغام ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کی ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر